پیش خدمت ہے ایک اور شارٹ، ایک بہترین سا ناول، عید صبح امید از شاہین سجاد۔ یہ ونی بیسڈ ناول ہے اور وٹا سٹا بیسڈ بھی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ عید صبح امید۔ ملک شاہ نواز خاموشی سے گھر میں داخل ہوئے۔ خواتین نے بڑی بے قرار نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ ان کے پیچھے ملک شہباز اور ملک ارباز سرخ چہرہ لیے داخل ہوئے۔ کیا ہوا شاہ پتر؟ کیا فیصلہ کیا جرگے نے؟ بیبے نے بڑی بے قراری سے پوچھا۔ ملک شاہ نواز کوئی جواب دیے بغیر بیٹھ گئے۔ پتر، تو جواب کیوں نہیں دے رہا؟ بیبے کی بے چینی پریشانی میں بدل گئی۔ کچھ نہیں بیبے، جرگے نے فیصلہ کیا ہے کہ عدیل خان کی بیٹی کا نکاح ملک شہباز سے کر دیا جائے۔ ملک شاہ نواز نے ان سب کے حواسوں پر بم پھوڑا۔ ملک شہباز کا چہرہ کچھ اور بھی سرخ ہو گیا۔ مگر کیوں؟ ایسا فیصلہ کیوں کیا جرگے نے؟ کیا ہم اپنے دشمنوں کی بیٹی کو اپنے گھر لائیں گے؟ نہ پتر، یہ نہیں ہو سکتا۔ بیبے کے انداز میں قطعیت تھی۔ مگر بیبے، جرگے کے فیصلے سے انحراف تو نہیں کیا جا سکتا نا؟ ملک صاحب بے بسی سے بولے۔ مگر ہم اپنے دشمنوں کی بیٹی کو بہو کے روپ میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ فریدہ بیگم نے بھی پہلی بار زبان کھولی۔ تو کیا کروں؟ جرگے کے فیصلے سے مکر جاؤں اور سارے گاؤں والے کے سامنے اپنا سر نیچا کر لوں؟ آپ جانتے ہیں کہ گاؤں میں جرگے کے فیصلے سے انحراف اس گاؤں کی روایت نہیں ہے، اور ملک شاہ نواز روایتوں کی پاسداری کرنے والا ہے، روایتوں کو توڑنے والا نہیں ہے۔ اب کے ملک شاہ نواز کا انداز قدر غصیلا تھا۔ مگر پتر، کوئی اور سبیل بھی تو ہو سکتی تھی نا؟ بیبے نے کہا۔ ہاں، ہو سکتی تھی۔ عدیل خان نے اپنے بیٹے سنگین خان کو میرے حوالے کر کے کہا کہ میں اسے اپنے ہاتھوں ختم کر لوں، کیونکہ وہ دشمنی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اب ایسے حالات میں کیا کرتا؟ کیا مار دیتا سنگین خان کو؟ میں نے وہی کیا جو مجھے منع کرنا چاہیے تھا۔ میں نے معاف کر دیا اسے۔ ملک شاہ نواز سانس لینے کے لیے رکے۔ جب میں نے سنگین خان کو معاف کر دیا تو عدیل خان نے اپنی پگڑی میرے قدموں میں لا کر رکھ دی کہ میں اس کی بیٹی کو اپنے بیٹے سے منسوب کر دوں تاکہ کچھ ازالہ ہو سکے، اور میں اس کی پگڑی کو اچھال نہیں سکتا تھا، لہٰذا میں نے اس کی بات مان لی۔ ملک شاہ نواز نے ساری تفصیل بیان کی، اور اس دفعہ بیبی بھی چپ کر گئی۔ بابا، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ آپ کو کچھ تو سوچنا چاہیے تھے نا۔ سنگین خان کو عدیل خان کا فیصلہ پسند نہ آیا تھا۔ اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا ان لوگوں کے دلوں سے کدورت مٹانے کا۔ عدیل خان نے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ مگر بابا، ان حالات میں وہ لاجورد کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، اس کا اندازہ ہے آپ کو؟ سنگین خان کو اپنی بہن کی فکر تھی۔ ہاں بیٹا، میں جانتا ہوں کہ ہماری بیٹی کو وہاں اچھے حالات کا سامنا نہیں ہوگا، مگر مجھے امید ہے ہماری بیٹی سب کے دل جیت لے گی۔ عدیل خان کا لہجہ پر عزم تھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے بابا، مگر لاجورد میری اکیلی بہن ہے، اور میں اپنی وجہ سے اسے آگ میں نہیں دھکیل سکتا۔ حالانکہ بے گناہ تو میں بھی ہوں، مگر حالات میرے خلاف جا رہے ہیں۔ سنگین خان کو افسوس تھا کہ اس کی وجہ سے لاجورد کی زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ سب کچھ خدا پر چھوڑ دو بیٹا، وہ جو کرے گا بہتر کرے گا۔ عدیل خان رب کی رحمت سے مایوس نہیں تھے۔ ملک شاہ نواز اور عدیل خان کے خاندان کی دشمنی کا سلسلہ بہت پرانا چلا آ رہا تھا۔ کئی نسلوں نے دشمنی کے سلسلے کو پروان چڑھایا تھا۔ عدیل خان فطرتاً صلح جو اور امن پسند شخص تھے۔ دوسری طرف ملک شاہ نواز بھی فطرتاً اپنے آباء و اجداد سے مختلف تھے، لہٰذا تاحال دونوں گھرانوں میں ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ حالات تو اس وقت کشیدہ ہوئے جب ملک شاہ نواز کا بھائی ملک بیدار اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کھیل رہا تھا۔ دفتن ایک گولی سنسناتی ہوئی آئی اور ملک بیدار کے دل میں سوراخ کر گئی۔ عین اسی اسنا میں اس سمت سے جس سمت سے ملک بیدار پر گولی چلائی گئی تھی، سنگین خان، عدیل خان کا بیٹا، ریوالور ہاتھ میں لیے اجرت بھرے انداز میں نکلا، جس کی وجہ سے سبھی کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ کارروائی اسی کی ہے۔ ملک بیدار کی لاش جب گھر پہنچی تو گھر بھر میں کوہرام مچ گیا۔ بیبے پچھاڑے کھا رہی تھی۔ ملک شاہ نواز کے کندھے جھک گئے تھے۔ شہباز، ارباز اور اریبا خان کا غم کے مارے برا حال تھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا زندگی سے بھرپور چاچو یوں خاموشی کی ردا اوڑھ لے گا۔ گھر کی فضا ماتمی تھی۔ ملک بیدار کے دوستوں نے پورا واقعہ من و ان ملک شاہ نواز کو بتا دیا تھا۔ ابھی وہ کوئی ایکشن نہیں لینا چاہتے تھے، کیونکہ 3 دن تک سوگ منایا جا رہا تھا۔ عدیل خان ان کے غم میں شریک ہونے کو آئے، مگر سب کا انداز بہت سرد اور روکھا تھا۔ گھر آئے مہمان کی لاج رکھی گئی تھی، ورنہ شہباز کا دل چاہ رہا تھا انہیں شوٹ کر دے۔ ملک شہباز اور ارباز کسی صورت ٹھنڈے نہیں ہو رہے تھے۔
अपने चाचू को याद करके उनका खून उबल पड़ता था, मगर मलिक शाहनवाज उन्हें सब्र की तलकीन कर रहे थे। मलिक शाहनवाज के तायाजाद भाई मलिक बहादुर खान भी चाहते थे कि संगीन खान और अदील खान का नामो निशान मिटा दिया जाए, मगर मलिक शाहनवाज जानते थे ये वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने का है। जिरके के अरकान दोनों तरफ से सालिस का किरदार अदा कर रहे थे। उनकी कोशिश थी कि यह मामला अफहाम तफहीम से हल किया जाएगा। संगीन खान का दावा था कि उसने मलिक बेदार पर गोली नहीं चलाई, मगर हालात तो वाकयात उसके खिलाफ जा रहे थे। कोई भी उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। मलिक बेदार के 40वें के बाद जिरगे ने मलिक शाहनवाज को उनके बेटों समेत बुलाया था और दूसरी तरफ अदील खान और संगीन को भी बुलावा भेजा था। दोनों पार्टियां मुकर्ररा वक्त जिरगे के लिए मखसूस जगह पर पहुंच गई थी। मलिक बहादुर खान भी अपने बेटों मलिक वहाब और मलिक जब्बार के साथ मौजूद थे। मलिकों के बेटे संगीन खान को खूंखार नजरों से देख रहे थे। जिरगे ने दोनों तरफ का मौकफ सुना और कबल इसके कि जिरगा अपना फैसला सुनाता अदील खान उठे और उन्होंने संगीन खान को मलिक शाहनवाज के रूबरू खड़ा कर दिया और साथ ही अपना रिवॉल्वर उनके कदमों में रख दिया कि वो अभी और इसी वक्त अपने भाई के खून का बदला ले और उसके बाद दुश्मनी का यह तवील सिलसिला खत्म कर दे। मलिक शाहनवाज उनकी इस जुर्रत पर दंग रह गए थे और फिर उन्होंने बड़ेपन का सबूत देते हुए उन्हें माफ कर दिया था। मलिक बहादुर पहलू बदल कर रह गया, मगर जिरगे के सामने कुछ करने से कासिर था। तभी अदील खान ने अपनी पकड़ी मलिक शाहनवाज के कदमों में लाकर रख दी कि वो दुश्मनी की इस पुरानी रिवायत को खत्म कर दें और उनके खानदान के साथ रिश्ता जोड़कर दोनों खानदानों को बाहम एक कर दे। मलिक शाहनवाज ने उनकी पगड़ी उठाकर उनके सर पर रख दी। अदील खान आगे बढ़कर उनके गले लग गए और यूं दुश्मनी की यह तवील रिवायत दम तोड़ गई। जिरगे के अरकान को उनका यह फैसला बहुत पसंद आया, ताहम चंद शिद्दत पसंद अनासर को दोनों का यह मिलाप पसंद न आया था। शहबाज अपने कमरे में आया तो शदीद गुस्से में था। मारे इश्तियाल के उसने पूरा कमरा उलट कर रख दिया। कीमती डेकोरेशन पीस जमीन पर दे मारे, बेडशीट सब नीचे फेंक दिए। चंद लम्हों के बाद कमरा मैदान जंग का नक्शा पेश कर रहा था। अरबाज कमरे में आया तो कमरे की हालत देखकर हैरान रह गया। व्हाट इज दिस भाई? वो असद हैरान था। नथिंग, जस्ट फ्रस्ट्रेशन। शहबाज अब सर पकड़े बैठा था। मगर भाई, फ्रस्ट्रेशन निकालने का ये कौन सा तरीका है? और वैसे भी आने वाली आप पर तो हावी नहीं होंगी, बल्कि आप उस पर हावी होंगे, तो फिर फिक्र किस बात की? अरबाज की बात उसके मन को लगी। कहते तो तुम ठीक हो, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा। जिस शख्स से मैं शदीद तरीन नफरत करता हूँ, उसकी बहन को अपनी जिंदगी में शामिल कर लूँ? ओह माय गॉड, आई विल गॉन मैड। शहबाज ने अपने बाल नोच लिए। रिलैक्स भाई। अरबाज ने उसके गिर्द बाजू लपेटे और शहबाज ने थक कर अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। अस्सलाम वालेकुम चची जान। मलिक बहादुर ने बेबे को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, आओ पुत्र, कैसे हो? बेबे ने बड़ी मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा। अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं चची अम्मा? मलिक बहादुर उनके साथ बैठ गए। बस पुत्र, क्या बताऊं, बेदार की मौत ने तो कमर तोड़ दी है। बेबे आह भर कर बोली। जी चची अम्मा, बेदार ने वाकई हमारे बाजू कमजोर कर दिए हैं और रही सही कसर भाई साहब ने पूरी कर दी है। भला दुश्मन को भी माफ किया जाता है? मलिक बहादुर नफरत से बोले। हाँ पुत्र, तू ठीक कह रहा है, पर वो भी मजबूर हो गया था। बेबे ने बेटे की साइड ली। वो मजबूर हो गया था, मगर आप तो मजबूर नहीं हैं ना चची अम्मा? मलिक बहादुर का लहजा पुरस्रार हो गया था। की मतबल पुत्र? बेबे समझ न सकी। आप बहुत भोली हैं। दुश्मन की बेटी को बहू बना रही हैं। उसकी जिंदगी ऐसे कर देना कि पल पल उसका बाप और भाई तड़पते रहें और यूं हमारे दिलों को कुछ सुकून मिलेगा। उसका लहजा शातिराना था। तू ठीक कह रहा है पुत्र, आने दे। उसकी जिंदगी ऐसी अजीरन कर दूंगी कि अदील खान उसे देख देख कर तड़पेगा। बेबे उसके याराना बातों में आ गई। मलिक बहादुर के होंठों पर जहर खंद मुस्कुराहट फैल गई। हेलो, क्या हो रहा है? वहाब ने दस्तक देकर अंदर झांका। आओ यार, ऐसे ही रेस्ट कर रहा था। शहबाज ने फौरन आगे बढ़कर वहाब से हाथ मिलाया। यार, चर्द ने बात तेरी शादी है और तू यूं मुंह सर लपेट के पड़ा हुआ है। वहाब ने उसके जख्मों पर नमक छिड़ा। प्लीज वहाब, मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता। शहबाज ने उसे टोक दिया। तू चाहे इस मौजू पर बात करे या ना करे, शादी तो तुझे करनी पड़ेगी। उसका अंदाज संजीदा था। हाँ, मुझे इससे इनकार नहीं। हालांकि तो मर्द हो, ऐसे किसी भी फैसले से इनकार कर सकते थे। इनकार कर सकता था, जैसे मुझसे तो पूछा गया था ना। उसका लहजा तंजिया हो गया। छोड़ो यार, मर्द होकर बुज़दिलों वाली बातें कर रहे हो।
वहाब ने उसे भड़काना चाहा। बात बुजदिली की नहीं, बात है बाबा की इज्जत की, और मैं उन्हें किसी के सामने शर्मिंदा नहीं कर सकता। उसके लहजे में बाप के लिए एहतराम बोल रहा था, और यहीं पर आकर बहादुर खान और उसके बेटे मार खा जाते थे। अब भी वहाब बेचौताब खाकर रह गया। लाज बेटा, शायद संगीन खान की तरह आप भी हमारे इस फैसले से नाखुश होंगी, मगर बेटा, दुश्मनी की दीवार गिराने के लिए किसी एक तरफ से तो पहल करनी ही थी ना। दुश्मनी का यह सिलसिला दोनों खानदानों के बीच बरसों से चला आ रहा है, और अब मैं चाहता हूं यह सिलसिला खत्म हो जाए। मैं अपनी आइंदा नस्लों को मोहब्बत का, अमन का और दोस्ती का तोहफा देना चाहता हूँ। अदील खान आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे। लाजवर चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। मैं जानता हूँ बेटा कि आपको वहां खुले दिल से कबूल नहीं किया जाएगा। कदम कदम पर आपको नफरत का सामना करना पड़ सकता है, मगर बेटा, अगर हम अपने हौसले और अज़्म को बुलंद रखें तो रास्ते की हर दीवार को गिराया जा सकता है। मैं ठीक कह रहा हूं ना? आदिल खान जो लाजवर्द के कमरे में दाखिल हुए थे, उन्होंने अपनी बात की आखिर में तायद चाही। जी बाबा जानी, लाजवर्द ने धीरे से उनकी तायद की। बस बेटा, मैं यही कहने आया था कि आपको जिस किस्म के हालात का सामना हो, आप बहुत सब्र हिम्मत से उनका मुकाबला करेंगी और अपने हुस्न सलूक से सबका दिल जीतने की कोशिश करेंगी। आदिल खान ने उम्मीद भरी नजरों से उनको देखा। जी बाबा जानी, मैं आपको मायूस नहीं करूंगी। लाजवर्द ने उनका मान नहीं तोड़ा। थैंक यू बेटा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आदिल खान ने खुश होकर उसे दुआएं दी। लाजवर्द चुप रही। उसका दिल तो खुद वसवसों की आमाजगाह बना हुआ था। बाबा, आप तो कह रहे थे कि दोनों खानदान एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, मगर वो तो आपस में रिश्तेदारियां जोड़ने लग गए हैं। मलिक जब्बार का बस नहीं चल रहा था कि दोनों खानदानों को आग के दहाने पर खड़ा कर दे। ओए पुत्र, जरा ठंडा करके खा। आदिल खान अपनी बेटी की शादी शहबाज से कर तो रहा है, मगर तू देखना कि उसकी बेटी का वहां क्या हशर होता है। उन सब के दिलों में अभी से उसके लिए नफरत डाल आया हूं। सुख चैन को तो अब भी दोनों खानदान तरसेंगे। मलिक बहादुर के होंठों पर पुरस्कार मुस्कुराहट थी और आंखों में शातिराना चमक। इसका मतलब है आपने उनको मजीद भड़का दिया है? मलिक जब्बार मकरू हंसी हंसा। आहो पुत्र, मामला इतना भी सीधा नहीं जितना तू समझ रहा है। संगीन खान जवान खून है। बहन की जिंदगी अजीरन होती देखेगा तो खून जरूर जोश मारेगा, और जोश में ही इंसान खतरनाक गलतियां करता है। मलिक बहादुर नफरत भरे लहजे में बोले, जबकि मलिक जब्बार मुस्कुरा दिया। मलिक शाहनवाज घर में दाखिल हुए तो घर में मुकम्मल खामोशी का राज था। वो अंदर बड़े हॉल नुमा कमरे में दाखिल हुए तो तीनों खवातीन हॉल कमरे में बैठी थीं और तीनों ही अपनी अपनी सोचों में डूबी हुई थी। क्या बात है, आप लोग इतने खामोश क्यों हैं? मलिक शाहनवाज ने उन तीनों को मुखातिब किया तो तीनों ही चौंक कर उनकी तरफ देखने लगे। क्या कहें पुत्र, कहने जोगा कुछ है ही नहीं। बेबे ने एक सरदा भरी। ऐसी कौन सी आफत टूट पड़ी है जो आप लोगों ने यूं मातमी फिजा पैदा की हुई है? कुछ भी हो, ये खुशी का मौका है और उस पर यूं उदास होना मुझे पसंद नहीं। मलिक साहब ने उन सबको इस रवैये पर टोक दिया। खुशी का ताल्लुक दिल से होता है मलिक साहब, और आपने कौन सा हमारे दिलों का ख्याल रखा? फरीदा बेगम कलसते हुए बोली। आप सब लोग तो यूं रिएक्ट कर रहे हैं गोया सारा कसूर मेरे हो। इन सब हालात और वाक़यात का मैं ही जिम्मेदार हूं। मलिक शाहनवाज गुस्से में आ गए। ना पुत्र, हम ये नहीं कहते। जो कुछ तूने किया अच्छा किया, मगर पुत्र हम भी क्या करें? अभी जख्म ताज़ा है ना, जब जख्म मंदमल हो जाएंगे तो हम भी ठीक हो जाएंगे। बेबे ने उनके गुस्से को ठंडा करना चाहा। बहरहाल कुछ भी हो, आप लोग शादी की तैयारियां करें। मैं किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। मलिक शाहनवाज हुक्म देते हुए चले गए और वो एक दूसरे को देख कर रह गए। बाबा हमारे एहसास समझ ही नहीं पा रहे, मगर खुद को खुश होने पर हम मजबूर भी तो नहीं कर सकते ना। अरीबा से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ना पुत्र, तू चुप रहे, अब और कुछ मत कह, वरना तेरे बाबा को गुस्सा आ जाएगा। बेबे ने अरीबा को समझाया और वो मुंह फुलाती उठकर अपने कमरे की जानिब चली गई और बेगम शाहनवाज आह भरकर रह गई। भला कब सोचा था कि वो अपने बेटे की शादी यूं करेंगी कि दिल में खुशी की हल्की सी रमक मौजूद ना हो। लाजवर्द बैठ के क्राउन से टेक लगाए सोचों में गुम थी। हाथ में पकड़ी किताब यूं ही खुली पड़ी थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो वो चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगी। संगीन खान को सर झुकाए अंदर दाखिल होता देखा तो खड़ी हो गई। संगीन खान आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आया और उसके पास आकर बैठ गया। संगीन खान की आंखें लाल अंगारा हो रही थीं, यकीनन वो रोता रहा था। संगीन खान कुछ देर चुपचाप बैठा रहा
और फिर अचानक अपने दोनों हाथ लाजवर्द के सामने जोड़ दिए। लाजवर्द ने तड़प कर उसके हाथ अपने हाथों में लिए और लबों से लगा लिए। आई एम सॉरी लाज, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मगर खुदा गवाह है मैंने ये सब नहीं किया। मगर मैं क्या करूं कि सब सबूत मेरे खिलाफ जा रहे हैं। मुझे अफसोस है कि तुम मेरी वजह से सूरत हाल से दो चार हो। संगीन खान की आवाज़ में दुख बोल रहे थे। नहीं लाला, आप ऐसा मत सोचे, ये सब तकदीर के खेल हैं, और तकदीर के खेल में इंसान एक ऐसा खिलाड़ी होता है जिसके अपने कोई ट्रिक्स नहीं होते, वो तो बस तकदीर के हाथों में होता है। लाज ने उनके कंधे पर सर रखते हुए धीरे से कहा। संगीन खान ने उसे अपने साथ लगा लिया और बेख्तियार उमड़ आने वाले आंसुओं पर काबू न रख पाया। प्लीज़ लाला, मैंने कहा ना मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, आपके आंसू मुझे तकलीफ दे रहे हैं। लाजवर्द ने उनके आंसू अपने पोरों में समेट लिए थे। वो एक उदास सी शाम थी जब लाजवर्द दुल्हन बनकर मलिक विला चली आई। एक ऐसी दुल्हन जो अनचाही थी, जिसके चोंचले किसी ने नहीं किए, जिसका शानदार इस्तकबाल नहीं हुआ, जिसको सास नंदों की चाहत के साए तले नहीं लाया गया, जिस पर से सदका खैरात नहीं वारा गया, जिसके हुस्न की नज़र नहीं उतारी गई। ऐसी ही दुल्हन थी वो। इस सर्द किस्म के इस्तकबाल ने लाजवर्द के वसवसों भरे दिल को मजीद सहमा दिया। उसे आइंदा आने वाले हालात की संगीनी का एहसास अभी से हो रहा था। उसे लाए काफ़ी देर गुजर चुकी थी, मगर अभी तक किसी ने उसे पानी तक न पूछा था। किसी को उसके आराम का ख्याल नहीं आया था। ना जाने कितनी देर गुजर चुकी थी। बैठे बैठे उसकी कमर तख्ता हो गई थी। प्यास से हलक में कांटे पड़ गए थे, मगर वो कहती तो किससे? भला कौन था जो उसके चाव उठाने को पास था? एक नापसंदीदा हस्ती का वजूद अहमियत ही क्या रखता है? बैठे बैठे वो बेहोश होने को थी कि किसी मेहमान खातून को उस पर तरस आया और उसकी सास की तवज्जो उसकी तरफ दिलाई कि उसे अपने कमरे में भेज दिया जाए। और उसकी सास ने भी मेहमानों के ख्याल से मजीद कोई बात किए बिना उसे मलिक शहबाज के कमरे में भिजवा दिया। उससे कमरे में तन्हा होते ही चारों तरफ निगाह दौड़ाई, मगर निगाह अफसरदा सी वापस लौट आई। कमरे में किसी किस्म की कोई सजावट नहीं की गई थी। वो बैठ के एक तरफ सिमट कर बैठी थी और फिर पता नहीं कब सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। रात का न जाने कौन सा पहर था कि दरवाज़ा जोरदार आवाज़ से खुला और वो सोते में उछल पड़ी। जल्दी से दुपट्टा दुरुस्त किया। मलिक शहबाज कुछ देर तमस्खुराना नज़रों से उसकी तरफ देखता रहा, फिर चंद कदम आगे बढ़कर उसके नज़दीक आ खड़ा हुआ। लाजवर्द का दिल धक धक करने लगा। आज की रात के हवाले से तुमने यकीनन बहुत से सपने सजाए होंगे। मेरे दिल में भी बहुत से अरमान थे, मगर तुम्हारे भाई ने सब मिट्टी में मिला दिए। अपने अजीज हसजान चाचू के कातिल की बहन को अपनी सेज पर बिठाऊं और जिंदगी से लुत्फ कशीद करूं, उसका तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो इंतहाई नफरत भरे अंदाज में कतरा कतरा जहर उसकी समातों में उंडेलने लगा। पहले तुम्हारे भाई ने मेरे प्यारे चाचू का कत्ल किया और सितम बालाए सितम तुमने आकर मेरे अरमानों का कत्ल किया। कातिल तो तुम दोनों ही हो। और मेरी बेबसी देखो कि ना तुम्हारे भाई की गर्दन मरोड़ सका हूँ और न आज तुम्हें शूट कर सकता हूँ। मलिक शहबाज के एक एक लफ्ज़ से नफरत की चिंगारियाँ निकल रही थी और लाजवर्द के पूरे जिस्म को भस्म कर रही थी। आज तुम्हारी सुहाग रात है और तुम लड़कियां आज की रात के हवाले से बड़े रंगीन सपने बुनती हो और रोनुमाई की आरजू भी करती हो, और मैं भी तुम्हें रोनुमाई का तोहफा ज़रूर दूंगा। यकीनन आज तक तुम्हारी तरह की रोनुमाई किसी को न मिली होगी। मलिक शहबाज का लहजा जहरखन था। फिर आगे बढ़कर उसकी थोड़ी को पकड़कर सख्ती से ऊपर उठाया और उसकी आंखों में नफरत से देखते हुए कहा, आई हेट यू। ये तुम्हारा तोहफा है आज की रात का, क्योंकि तुम्हारा चेहरा देखकर यही अल्फाज और जज्बात मेरे दिल से निकले हैं। इन नफरत भरे अल्फाज ने लाजवर्द को पत्थर का कर दिया। क्या इतनी नफरत शदीद वो सह पाएगी? लाजवर्द का दिल नाउमीद होने लगा, मगर यकायक बाबा का पुरुम्मीद चेहरा उसकी निगाहों में घूम गया और उसने दिल को ढारस बंधाई कि रात कितनी ही स्याह और लंबी क्यों न हो, उसकी सहर ज़रूर होती है। अब बराए मेहरबानी इस बेड से तशरीफ़ ले जाइए, मुझे आराम करना है। उसे बेड से तकरीबन धक्का देते हुए कहा और ख़ुद वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वो अपने टूटे बिखरे वजूद को संभालती हुई उठी और कमरे में मुनासिब जगह तलाश करने लगी। आखिर एक कोने में उसे जगह मुनासिब लगी तो वहाँ अपने लिए जगह बनाई और तकिया रखकर वहीं लेट गई। शहबाज ने कपड़े चेंज किए और बिना उसकी तरफ देखे बेड की तरफ बढ़ा और लंबी तान कर सो गया। लाजवर्द की आंख सुबह ही सुबह खुल गई। फजर की अजानें हो रही थी। वो उठकर बैठ गई और खामोशी से अजान सुनने लगी।
जब अजानें खत्म हुई तो उसने उठकर वजू किया और नमाज पढ़ने लगी। नमाज पढ़ने के बाद काफी देर जाए नमाज पर बैठकर जिक्र करती रही, फिर दुआ के लिए हाथ उठाए और बेआवाज होठों से दुआ करती रही। नमाज से फरागत के बाद वो उठी और बेआवाज कदमों से चलती हुई कमरे से बाहर निकल आई और मुलाजिम से बेबे के कमरे का पूछकर उनके कमरे की तरफ आ गई। दरवाजे के पास रुककर उसने अपनी हिम्मत जमा की और धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद दरवाजा आहिस्ता से खोलकर अंदर दाखिल हो गई। आहट पर बेबे ने सर उठाकर उसे देखा। सुबह बखैर बेबे, उसने झुके सर के साथ धीरे से कहा। बेबे की पेशानी पर लातादाद बल पड़ गए। ए लड़की, ये तुम मुंह उठाए मेरे कमरे में यूं अंधेरे क्यों चली आई हो? अब पूरा दिन नहुसत भरा ही गुजरेगा। बेबे के लहजे में उसके लिए बेइंतहा नफरत थी। लाजवत सर झुकाकर होंठ काटती रही। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्यों देख रही हो? जाओ, चली जाओ यहाँ से। बेबे ने कहते साथ ही मुंह फेर लिया। लाजवर्त के लिए वहां खड़े होने का कोई जवाब बाकी न रहा, सो वो खामोशी से पलट गई। शहबाज ने वलीमे से सख्ती से मना कर दिया था, लिहाजा सभी मामूल के कामों में मसरूफ थे। मलिक हाउस की रिवायत थी कि सब सुबह का नाश्ता और रात का खाना सब मिलकर खाते थे, और वो भी वक्त की पाबंदी के साथ। मलिक शाहनवाज वक्त के बहुत पाबंद थे। घर के सब अफराद 7:30 बजे नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में लाजमन पहुंचते थे। इस वक्त भी सभी बरकफ्तारी से डाइनिंग हॉल में पहुंचे और अपनी अपनी नशिस्त संभाली। मलिक शाहनवाज और बेबे पहले से ही मौजूद थे। सब ने उन्हें सलाम किया। सबके पहुंचने पर मुलाजिम नाश्ता ले आया। मलिक शाहनवाज ने मेज पर तायराना निगाह डाली। लाजवर्द नहीं आई। उसकी गैर मौजूदगी को सिर्फ उन्होंने महसूस किया। सभी चौंक कर उन्हें देखने लगे। वो अपने कमरे में नाश्ता कर लेगी, बेगम शाहनवाज ने नागवारी से जवाब दिया, मगर यहाँ हम सब के साथ क्यों नहीं करेगी, जबकि अब वो भी इस घर की एक फर्द है। बस पुत्र, अब और कुछ न कहना। अगर तू चाहता है कि मैं सबके साथ नाश्ता करूं तो उसे या ना ही बुला। बेबे ने इंतहा के बेजार अंदाज में कहा और मलिक शाहनवाज चुप कर गए। बाकी सब खामोशी से नाश्ता करते रहे। नाश्ते के बाद शहबाज उठकर कमरे में चला आया तो वो सोफे पर एक तरफ सिमट के बैठी हुई थी। मोहतरमा, आप यहाँ मेहमान नहीं हैं। आज से किचन की सारी जिम्मेदारी तुम पर होगी। आज से सबका नाश्ता और खाना तुम खुद बनाया करोगी, और नाश्ते या खाने में ताखीर यहाँ के उसूलों के खिलाफ है। मलिक शहबाज एक लफ्ज चबा चबा कर बोला। लाजवर्द सर झुकाए सुनती रही। सुन लिया है, ये यूं ही सर पर से गुजर गया है। शहबाज को इस गुमसुम लड़की से चिढ़ हुई। जी सुन लिया है। वो बुरी तरह बौखलाई। और याद रखो, मैं अपनी बात बार बार दोहराने का आदी नहीं हूँ। उठो, मेरे कपड़े प्रेस करो। एक और हुक्म सादिर हुआ। वो सर झुकाए खड़ी हो गई। बेगम शाहनवाज लाउंज में बैठी अखबार पढ़ रही थी। अरीबा खान पास बैठी नोट्स बना रही थी और बेबे हाथ पे तस्बीह पकड़े मुंह ही मुंह में विर्द कर रही थी। लाजवर्द आहिस्ता कदमों से चलती हुई आई। अस्सलाम वालेकुम। उसने धीमी आवाज में सलाम किया। सब ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। जवाब देने की जहमत अलबत्ता किसी ने नहीं की। अम्मा जान, दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? उससे मुअद्दब होकर पूछा। जब हैसियत मुलाजिम की दी गई थी तो फिर तौर तरीके भी मुलाजमे वाले होने चाहिए। क्या मतलब? बेगम शाहनवाज ने उलझन आमेज अंदाज में उसे घूरा। वो जी, उन्होंने कहा था कि आज से खाना मैं बनाया करूंगी। उससे घबरा कर वजाहत दी। ठीक है, ऐसा करो, बेबे के लिए बगैर नमक मिर्च का परहेजी खाना तैयार करो और बाकी सब के लिए सब्जी बना लो और साथ में चिकन बना लो। बेगम शाहनवाज ने मेन्यू बताया और वापस मुड़ गई। बेबे, अपना शहबाज पुत्र तो बड़ा सियाना है। मैं तो खौफजदा थी कि लड़की का मासूम हुस्न उसे काबू में न कर ले, मगर मान गए। आखिर बेटा किसका है? बेगम शहनवाज के लहजे में बेटे के लिए फख्र बोल रहा था। बेबे भी शहबाज के इस इक़दाम से बहुत खुश थी। बेगम शाहनवाज ने खानसामा को सौदा सरफराने के काम पर लगा दिया और किचन मुकम्मल तौर पर लाजवर्द के जिम्मे आ गया। वो पेशानी पर बाल डाले बगैर तीनों वक्त का खाना अकेले बनाती। उसकी पूरी कोशिश होती कि खाने में ज़रा भी ऊंच नीच न हो, क्योंकि उसकी मामूली से मामूली गलती को भी यहाँ किसी ने बर्दाश्त नहीं करना था। सुबह वो 6 बजे से नाश्ता तैयार करना शुरू कर देती और घर के सब अफराद की पसंद का नाश्ता बनाते बनाते 7 बज जाते। फिर जब वो नाश्ता टेबल पर सजा देती तो सभी नाश्ते के लिए आ जाते। सबके नाश्ते से फारिग होने तक वो किचन का बखेड़ा समेट लेती और फिर तकरीबन 8 बजे तक सब नाश्ता करके अपने अपने कामों पर रवाना हो जाते। और वो नाश्ते के बर्तन समेट कर टेबल साफ कर देती और फिर गंदे बर्तनों के ढेर को धोना शुरू कर देती। उसके बाद किचन साफ करते करते 9 बज जाते। 9 बजे वो अपने कमरे की सफाई करती। शहबाज ऑफिस जाते हुए पूरे कमरे में फैलावा कर जाते। उसे समेटते समेटते 10 बज जाते। 10 बजे तक दोपहर के खाने की तैयारी शुरू हो जाती और तकरीबन 1 बजे तक दोपहर का खाना खाया जाता।
رات کے کھانے میں چونکہ سب افراد خانہ موجود ہوتے تھے، اس لیے رات کے کھانے کا مینیو کافی زیادہ ہوتا تھا۔ ہر کوئی اپنی اپنی پسند کی چیز کھانا پسند کرتا تھا۔ لاجورد اکیلی تمام ڈشز تیار کرتی۔ اب تو وہ اس روٹین لائف کی عادی ہو گئی تھی۔ لاجورد تمام کام نپٹا کر رات کے کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے کی حالت دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ شہباز نے پورا وارڈروب کمرے میں بکھیر دیا تھا اور اب کمروں کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ یہ سب کپڑے آئرن کر کے ہینگ کر دو اور اس میں سے میرا بلیک سوٹ نکال کر صبح کے لیے تیار کر دو۔ وہ اکھڑے لہجے میں آرڈر دیتا بستر پر دراز ہو گیا اور لاجورد کو محاورتاً نہیں حقیقتاً رونا آ گیا۔ تھکاوٹ سے اس کی بری حالت ہو رہی تھی۔ اس نے سارے کپڑے اٹھا کر آئرن سٹینڈ کے پاس رکھے اور پھر باری باری سب کو آئرن کر کے ہینگ کرنے لگی۔ شہباز بیڈ پر لیٹا ٹی وی دیکھ کم اور چینل سرچنگ زیادہ کر رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کی مشقت کے بعد لاجورد نے وارڈروب دوبارہ سیٹ کی، شہباز کا بلیک سوٹ آئرن کر کے آفس کے لیے تیار کیا اور پھر آہستگی سے چلتی ہوئی اپنی مخصوص جگہ کی طرف آ گئی۔ ارادہ تھا کہ بس پڑھ کر سو جائے۔ میرے لیے ایک کپ چائے بنا کر لے کر آؤ۔ شہباز نئے حکم کے لیے تیار تھا۔ لاجورد کو اپنی بے بسی پر تاؤ آ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے جا کر کچن میں چائے تیار کر کے لے آئی، چائے لا کر شہباز کو پکڑائی اور خود ایک طرف ہو کر انتظار کرنے لگی کہ کب وہ کپ خالی کرے اور وہ اسے کچن میں رکھ کر سو جائے۔ شہباز چائے یوں گھون گھون پی رہا تھا مانو آب حیات ہو، شاید اس کی بے بسی سے لطف لے رہا تھا۔ آخر خدا خدا کر کے چائے ختم ہوئی اور اس نے پھرتی سے اٹھ کر چائے کا کپ پکڑا اور کچن میں جا کر دھو کر رکھ دیا، اور واپس آ کر اس نے شہباز کی طرف دیکھا، مبادا پھر کوئی کام ہو، مگر اب کی دفعہ وہ خود بھی آنکھوں پر بازو رکھ کے سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے لائٹ آف کی اور لیٹ گئی۔ بابا، آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور وہاں ملک ہاؤس پہ سب سکون سے اور خاموشی سے یہ برداشت کر گئے ہیں۔ ملک جبار نے ملک بہادر خان سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، خیر یوں خاموش تو ہرگز نہیں رہوں گا۔ تایا جی اریبہ خان کا رشتہ کہیں اور طے کر دیں اور ہم ہاتھ بھرتے رہ جائیں۔ آپ پہلی فرصت میں ان سے بات کر لیں۔ ملک جبار کے لہجے میں بے قراری تھی۔ تو فکر نہ کر پتر، میں کوئی مناسب موقع دے کر شاہ نواز بھائی سے بات کروں گا۔ ملک بہادر خان نے اسے تسلی دی۔ لیکن بابا یاد رکھیں، کہیں آپ کا یہ مناسب موقع آئے بغیر چلا جائے۔ ملک جبار کے انداز میں بے نام وسوسوں کی لہر تھی۔ ٹھیک ہے پتر، میں آج کل میں بات کر لوں گا۔ ملک بہادر خان سگار کا کش لیتے ہوئے گہری سوچ میں گم ہو گئے اور ملک جبار مطمئن ہوتا باہر نکل گیا۔ ملک شاہ نواز عدیل خان سے ملنے ان کے گھر آئے تھے۔ عدیل خان کو پتہ چلا تو فوراً استقبال کو آئے اور آگے بڑھ کر ملک شاہ نواز کو گلے لگا لیا۔ آئیے ملک صاحب، تشریف رکھیے، آج تو میرے غریب خانے کے نصیب جاگ گئے۔ عدیل خان حقیقتاً ان کے آنے سے خوش ہوئے۔ اب یوں شرمندہ تو نہ کرو عدیل خان، ملک شاہ نواز نے خوش دلی سے کہا اور دونوں ہنس دیے۔ دونوں کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ چائے پانی کا دور بھی چلا۔ بہت دیر بعد عدیل خان کچھ ہچکچاتے ہوئے ملک شاہ نواز سے مخاطب ہوئے۔ یار شاہ نواز، ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ نہیں یار، جو کہنا ہے کھل کر کہہ دو، میں بھلا کیوں برا مانوں گا؟ ملک شاہ نواز حیران ہوئے۔ یار تو یقین نہیں کرتا نا کہ سنگین خان ملک حیدر کا قاتل ہے؟ شاید تم یقین نہ کرو، مگر میرا دل کہتا ہے کہ سنگین خان ایسا نہیں کر سکتا۔ عدیل خان متذبذب تھے۔ میں جانتا ہوں یار، تم جو کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو۔ شاہ نواز نے عدیل خان کی ہمت بندھائی۔ میں چاہتا ہوں شاہ نواز کہ تم سنگین خان کو اپنی فرزندگی میں لے لو۔ عدیل خان جھجک کر خاموش ہو گئے۔ ملک شاہ نواز یہ سن کر کئی ثانیے تک کچھ بول نہ سکے۔ یار اگر تیرا دل نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں، میں اپنی بات واپس لے لیتا ہوں۔ ملک شاہ نواز کی چپ نے عدیل خان کو مایوس کر دیا۔ نہیں یار، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، میں تو گھر والوں کے رد عمل کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ ابھی تو وہ لاج بیٹی کو بہو کی وہ حیثیت نہیں دے سکے جو اس کا حق ہے اور جس کے لیے میں تم سے واقعتاً شرمندہ ہوں۔ ملک شاہ نواز نے عدیل خان کو اپنے خدشات سے آگاہ کیا۔ کوئی بات نہیں یار، ایک وقت آئے گا جب خدا ساری حقیقتوں کو بے نقاب کر دے گا، تب یہ نام نہاد نفرت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ عدیل خان پرعزم تھے۔ انشاءاللہ خدا ایسا ہی کرے۔ آج سے اریبہ خان تمہاری امانت ہے، جب چاہے بارات لے کر آ جاؤ۔ ملک شاہ نواز نے اچانک فیصلہ کن انداز میں عدیل خان کو پرمسرت حیرت میں مبتلا کر دیا۔ اتنی جلدی بھی نہیں کرو یار، تم ماں جی اور بھابھی سے مشورہ تو کر لو۔ عدیل خان نے اس کی جلد بازی پر کہا۔ چھوڑ یار، ملک شاہ نواز نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ میں اپنی دی ہوئی زبان سے پھرا نہیں کرتا، اور یوں بھی میں اپنے معاملات میں کسی سے مشورہ نہیں لیتا۔ ان کا انداز اٹل تھا۔
अस्सलाम वालेकुम चची जान। मलिक बहादुर खान ने झुक कर बेबे को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो पुत्र? बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया। बेबे ने उनके सर पर हाथ फेरते हुए हाल अहवाल दरियाफ्त किया। बस चची जान, दुनिया के बखेड़ों में उलझा हुआ हूँ, मलिक बहादुर खान ने कहा और बैठ गया। हाँ पुत्र, वाकई दुनिया के ये बखेड़े जान को आ जाते हैं। बंदा अपनों से मिलने को तरस जाता है। खैर छोड़ो, तू सुना घर में सब खैर है? जब्बार और बाज पुत्र कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ है, सब खैरियत है। मलिक बहादुर ने सादतमंदी का मुजाहरा किया। भाई सब नजर नहीं आ रहे, कहीं बाहर गए हैं? बाहर डेरे तक गए हैं, आते ही होंगे, बेबे ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद लाजवा ट्रे में चाय रख कर ले आई। उसने पास आकर धीमे से सलाम किया, जिसका जवाब देना गवारा नहीं किया गया। वो चाय दोनों को देकर चली गई। चची जान, इस कुड़ी को देखकर तो हैदर की याद और भी आती होगी। मलिक बहादुर ने बेबे के जख्मों पर नमक छिड़का। हाँ पुत्र, वो तो एक वेले भी मेरी नजरों से नहीं हटता। बेबे बेटे के जिक्र पर आबदीदा हो गई। इतने में मलिक शाहनवाज की जीप दाखिल हुई। जीप पोर्च में खड़ी कर वो जल्दी से नीचे उतरे और अंदर चले आए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मलिक बहादुर ने सलाम किया। मलिक शाहनवाज ने गर्मजोशी से जवाब दिया। कैसे हो बहादुर खान? मलिक शाहनवाज ने अहवाल दरियाफ्त किया। बिल्कुल ठीक भाई साहब, आज मैं एक ख़ास मकसद से आप लोगों के पास आया हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे मायूस नहीं करेंगे। मलिक बहादुर ने तमहीद बांधी। बेबे और मलिक शाहनवाज ने उलझन भरी नज़रों से उसे देखा, ताहम खामोश रहे। मैं अरीबा खान का हाथ अपने बेटे मलिक जब्बार के लिए मांगने आया हूँ। मलिक बहादुर ने गोया उनके हवास पर बम फोड़ा। मलिक शाहनवाज चुप के चुप रह गए। बेबे चंद लम्हे हैरान सी उन्हें देखती रहीं, फिर खुशी से बोले, क्यों नहीं पुत्र, जब्बार भी अपना बेटा है, देखा भाला है। क्यों शाहनवाज पुत्र, तू क्या कहता है? सॉरी बेबे, अगर मलिक बहादुर पहले बात करता तो मुझे कोई इतराज़ ना होता, मगर आज मैं अरीबा खान का रिश्ता तय कराया हूँ। मलिक शाहनवाज के इंकशाफ ने मलिक बहादुर और बेबे दोनों को शशदर कर दिया। मगर किससे? दोनों यकदुबान बोले, अदील खान के बेटे संगीन खान के साथ। अब के धमाका बहुत शदीद था। बेबे ने फटी फटी आंखों से उसकी तरफ देखा। तो तूने मेरे बेटे के कातिल से अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ा है शाहनवाज? तुझे क्या हो गया पुत्र? तू अदील खान को इनकार कर दे, ये नहीं हो सकता। नहीं बेबे, मलिक शाहनवाज जान तो दे सकता है मगर अपनी बात से फिर नहीं सकता। मलिक बहादुर हैरान और परेशान थे। बाजी एक बार फिर उनके हाथ से निकल गई थी। तू जानता है शहबाज और अरबाज को वो कभी नहीं मानेंगे। बेबे ने पोतों का डरावा दिया। अभी उनका बाप जिंदा है फैसला करने के लिए। अगर किसी ने भी इस फैसले से रुगरदाने की कोशिश की तो वह मलिक शाहनवाज की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मेरी मौत के बाद सब अपने फैसलों में आज़ाद होंगे। मलिक शाहनवाज दो टोक अंदाज में बात खत्म कर उठकर बाहर चले गए। अरीबा खान जो कुछ देर कबल वहां आई थी, गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा सुनकर गोया पत्थर की हो गई। मलिक बहादुर तनफन करते चले गए, जबकि बेबे अलग मुतफक्किर थी। शाम तक ये खबर पूरे घर में गर्दिश कर चुकी थी और सभी हैरत ज़दा थे। शहबाज और अरबाज का बस नहीं चल रहा था कि वो संगीन खान को शूट कर दे। अरीबा खान को चुप लग गई थी। बेगम शाहनवाज अलग बुखलाई हुई थी। बेबे गुमसुम होकर रह गई थी। लाजवर्द खुद हैरान और परेशान थी। इन सारे हालात में अगर कोई ज़ात पुरसुकून थी तो वो मलिक शाहनवाज की थी। किसी में हिम्मत न थी कि उनके फैसले के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता। शहबाज और अरबाज ने खूब दिल खोल कर भड़ास निकाली, मगर जब उनके सामने गए थे चुप कर गए। मलिक शाहनवाज ने सबको लिविंग रूम में बुलाया और सबके जमा होने पर ठहर ठहर कर कहना शुरू किया। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने ऐसी कोई अनहोनी कर दी है। जब अदील खान की बेटी इस घर की बहू बन सकती है तो फिर मलिक शाहनवाज की बेटी अदील खान की बहू क्यों नहीं बन सकती? सब लोग कान खोल कर सुन लें। मैंने जो कह दिया वही होगा। और हाँ, मैं इन फजूल रस्मों का कायल नहीं। इतवार के दिन निकाह भी होगा और रुखसती भी। जो करना है उसी दौरान कर लेना। मलिक शाहनवाज शायद उन सब के आसाब को आजमा रहे थे जो झटके पर झटके दिए जा रहे थे। तुम में से किसी को एतराज़ है? अब बारी बारी सबसे पूछा। सब खामोश रहे। एतराज़ करते तो कौन सा किसी ने अमल करना था। उनके जाने के बाद लिविंग रूम में हलचल मच गई। शहबाज तपाई को ठोकर मारते हुए चले गए। अरबाज भी बुड़बुड़ाते हुए बाहर निकले। अब बारी बारी सभी अपने अपने दिल के फपोले फोड़ रहे थे। जी बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? संगीन खान ने हैरत से पूछा। मैं ठीक कह रहा हूँ। मैंने मलिक शाहनवाज से बात कर ली है और वो रजामंद है। मगर बाबा, ये सब कैसे मुमकिन होगा? क्या अरीबा खान मान जाएगी? शहबाज और अब्बास को एतराज़ नहीं होगा, और वो भी ऐसी सूरत में जब वो मेरी सूरत देखना भी पसंद नहीं करते।
संगीन खान की तशवीश अभी तक दूर नहीं हुई थी। ये सब जो तुम कह रहे हो दुरुस्त है, मगर अभी शाहनवाज के बेटे इतने खुदसर नहीं कि बाप के सामने आवाज बुलंद कर सके। जब शाहनवाज ने हाँ कह दी तो फिर उसके फैसले से उसे कोई नहीं हटा सकता। अदील खान मलिक शाहनवाज को अच्छी तरह जानते थे। बस बेटा, अब तुमसे एक दरख्वास्त है कि तुम अरीबा खान को खुश रखना और उसे यहाँ कोई तकलीफ न होने देना। तुम लाजवर्द के साथ होने वाले सलूक की सज़ा अरीबा खान को बिल्कुल नहीं दोगे। अदील खान ने बेटी से तसल्ली चाही। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए बाबा, आपका बेटा अभी इतना कमज़ोर नहीं हुआ कि वो कमज़ोर औरतों से बदले लेगा। संगीन खान ने उन्हें इत्मीनान दिलाया और अपने कमरे में चला गया। रिश्ते के लिए हाँ कहकर शहनवाज ने लाजवर्द की जिंदगी मजीद अजाब बना दी। अब तो शहबाज आते जाते उसे तंज के तीरों से छलनी करते रहते। बाकी सबका रवैया भी खास हौसला अफजा न था। पहले कौन सा ख्याल करते थे, मगर जो थोड़ा बहुत लिहाज और मुरव्वत बाकी था अब वो भी नहीं रही। अरबाज अगरचा लाजवर्द के लिए कोई नर्म गोशा दिल में न रखता था, मगर कभी बराह रास्त टोका भी न था। मगर उस दिन वो भी अपना जब्त खो बैठा था। लाजवर्द अरबाज के कमरे की सफाई कर रही थी। सफाई करने के बाद उसने अरबाज के कपड़े आयरन करके हैंगर में लटकाए और वार्डरोब खोलकर वो कपड़ों को तरतीब से रख रही थी कि मुआन वार्डरोब के ऊपरी खाने से एक डायरी फिसलकर नीचे गिरी और डायरी में रखी तस्वीरें बाहर आ गईं। उसने झुककर डायरी और तस्वीरें उठाईं। तस्वीरों में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मुख्तलिफ पोज बनाए मुस्कुरा रही थी। उसने तस्वीरें देखकर दोबारा डायरी में रखी और अभी वो इन तमाम चीज़ों को जगह पर रखती कि अचानक अरबाज कमरे में दाखिल हुआ। अपने कमरे में लाजवर्द को देखकर वो चौंका, फिर उसके हाथ में डायरी और तस्वीर देखकर तीर की तरह उसकी तरफ लपका और डायरी और तस्वीरें उसके हाथ से छीन ली। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरे मामला पे इंटरफेयर करने की? अरबाज ने गुस्से की शिद्दत से उसका बाजू पकड़कर तकरीबन झटका दिया। तकलीफ की शिद्दत से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मैं यहाँ की सफाई कर रही थी, वो हकलाई। सफाई कर रही थी या मेरी जासूसी? अरबाज का गुस्सा कम होने में ना आ रहा था। अब खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? गेट आउट फ्रॉम हियर। वो तकरीबन धाड़ा और लाजवर्द भागती हुई उसके कमरे से निकली। मैंने कहा था ना बाबा, आपसे कुछ नहीं होगा। अब देख लें, हम मुंह देखते रह गए और अदील खान एक बार फिर बाजी अपने नाम कर गया। मलिक जब्बार पेचोताब खा रहा था और सख्त मुश्तिल अंदाज में कमरों के बीचों बीच टहल रहा था। बस पुत्र, मुझे क्या पता था कि शाहनवाज भाई ऐसा कोई फैसला करेगा। मलिक बहादुर खुद भी सदमे की कैफियत में थे। बाजी एक बार फिर उनके मुखालफिन ले गए थे। आप अब भी खामोश बैठे रहें। मैं तो कहता हूँ अब हमें अब खुलकर उनसे बात कर लेनी चाहिए। ये ना हो वक्त फिर हमारे हाथों से निकल जाए। मलिक जब्बार अताउले हो रहे थे। मैं भी ऐसे ही कुछ सोच रहा हूँ, बस मुनासिब मौके की तलाश में हूँ। मलिक बहादुर पुरसोच अंदाज में बोले। आप बस सोचते रहें, अब जो करूँगा मैं खुद करूँगा। बस ज़रा अपने बिजनेस को मुकम्मल तौर पर लंदन में इस्टेब्लिश कर लूँ, फिर खुलकर सामने आऊँगा। मलिक जब्बार का अंदाज फैसला कौन था। अब के मलिक बहादुर खामोश रहे। आखिरकार वो दिन भी आ पहुंचा जब अरीबा खान रुखसत होकर संगीन खान की हवेली आ गई। अरीबा खान खूबसूरत थी, मगर दुल्हन बनकर जो रूप उस पर आया था वो देखने वालों की आंखें खीरा कर रहा था। दूसरी तरफ कम संगीन खान भी न लग रहा था। शान तो आज उसकी भी शहजादों वाली थी। अगर दोनों की जोड़ी को चांद सूरत की जोड़ी कहा जाता तो बेजाना था। अरीबा खान के दिल में दुल्हन वाले कोई अरमान न थे। वो संगीन खान के सजे सजाए कमरे में आ तो गई थी, मगर दिलो दिमाग अभी तक ये सब कबूल नहीं कर पा रहा था। लोगों के सामने बमुश्किल खुद पर कंट्रोल किए रखा, मगर जब वो संगीन खान के कमरे में तन्हा हुई तो उसके दिल नफरत की शिद्दत से धड़क उठा। सजी सजाई सेज उसे दहकती हुई आग लग रही थी, जिस पर बैठने से उसका जिस्म जलकर खाकस्तर हो जाता। उसने सबसे पहले अपने जिस्म पर मौजूद जेवरात उतार उतार कर पटकने शुरू किए, फिर अपना उरूसी जोड़ा उतार कर सादा सूट पहना और रगड़ रगड़ कर सारा मेकअप साफ कर दिया। फिर उस पर भी बस न चला तो सेज पर मौजूद फूल पत्तियों को जमीन पर फेंकना शुरू किया। अभी वो इस तकरीबी कार्रवाई को न जाने कितनी देर जारी रखती कि दफतन संगीन खान ने अपने बेडरूम में कदम रखा। कमरे की हालत देखकर तब वो हकदक रह गया। ये तुम क्या कर रही हो? ये क्या हालत बना रखी है कमरे की? हैरत की शिद्दत से उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। ये मेरा जवाब है। अगर तुम अपने दिल में किसी खुशफहमी को जगह देकर अंदर आए हो तो उसे निकाल बाहर करो। अरीबा खान मर तो सकती है, मगर तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं जोड़ सकती। रिश्ता जुड़ गया, ये मेरी मजबूरी थी, क्योंकि बाबा जान ने धमकी ही ऐसी दी थी। मगर मैं तुमसे कोई कल्बी और ताल्लुक़ रखूँगी, इस भूल में मत रहना। वो लफ्ज़ चबा चबा कर बोल रही थी और संगीन खान दुख की शिद्दत के बायस गंग होकर रह गया। चंद लम्हों बाद वो बोला भी तो बस ये, अरीबा खान,
जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करना मर्द के लिए कभी दुश्वार नहीं होता, और वो भी ऐसी सूरत में जब वो शरई और कानूनी हक रखता हो। मगर संगीन खान को ज़बरदस्ती ताल्लुकात बनाने की आदत नहीं। रिश्ता जोड़ना तुम्हारी मजबूरी थी और बरकरार रखना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं ये नाम नेहाद रिश्ता तोड़कर दोनों ख़ानदानों के बीच नफरत को जन्म नहीं देना चाहता। लेकिन ये संगीन खान का वादा है कि वो तुमसे कोई भी ताल्लुक़ तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर कायम नहीं करेगा। मेरे बाबा ने ज़िंदगी में पहली बार मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म किया है। तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं। तुम्हें देखती हूँ तो मुझे अपने चाचू की खून में नहाई हुई लाश दिखाई देती है। इन दरो दीवार से मुझे चाचू की मौत की आहटें सुनाई देती हैं। अरीबा खान कानों पर हाथ रखकर हिज़यानी अंदाज में बोली, और संगीन खान कर्ब से होंठ काट कर रह गया। मैं तुम लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि हैदर खान के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं आज आखिरी बार कह रहा हूँ कि वक्त मेरी बेगुनाही ज़रूर साबित करेगा। फिर तुम लोग अपने किए पर शर्मिंदा होगे, लेकिन तब शायद संगीन खान तुम लोगों को माफ़ न कर पाए। संगीन खान ने सर्द अंदाज में कहते हुए बेड से तकिया उठाया और सोफे की तरफ बढ़ गया। लाजवर्द ने दरवाज़ा हल्के से नॉक किया और सर उठ अंदर करके झांका। मैं अंदर आ जाऊं बाबा जान? उसने झिझकते हुए इजाज़त चाही। अरे आ जाओ बेटा, इसमें इजाज़त की क्या बात है? शाहनवाज ने खुश होकर कहा। मैं आपके लिए चाय लाई थी बाबा जान। लाजवर्द ने कप उनकी टेबल पर रखा और रैक्स में पड़ी बुक्स की तरफ देखा। थैंक यू बेटा, जी खुश कर दिया। शाहनवाज ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। बाबा जान, ये सारी बुक्स आपकी हैं? लाजवर्द के लहजे में इश्तियाक था। हाँ बेटा, मुझे स्टडी करने का जुनून की हद तक शौक है, और जहाँ जाता हूँ अपने साथ बुक्स ज़रूर लाता हूँ। मेरे पास हर तरह की बुक्स हैं, शायरी की, तारीख, फ़लसफ़े, फ़िक्शन, सफ़रनामे, सब मौज़ूआत पर बुक्स हैं। उसकी दिलचस्पी देखते हुए शाहनवाज ने तफसील बताई। क्या मैं कभी कभार कोई बुक्स पढ़ सकती हूँ? लाजवर्द ने डरते डरते कहा। अरे क्यों नहीं बेटा, मुझे बड़ी खुशी होगी। मेरे बच्चों में से तो किसी को किताबों से शगफ नहीं, बस कोर्स की किताबें पढ़ ली काफ़ी हैं। अब तुम इन्हें पढ़ोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। शाहनवाज बहुत खुश हुए। थैंक यू बाबा जान, आप बहुत अच्छे हैं। लाजवर्द बच्चों की तरह खुश हुई। लाज बेटा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हें इस घर में तुम्हारा सही मुकाम नहीं दिला सका। शाहनवाज शर्मिंदा अंदाज में बोले। नहीं बाबा जान, मुझे आपसे कोई गिला नहीं। मेरे बाबा कहते हैं वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, और आज चाहे कितनी ही काली और लंबी हो रात होती है, आखिर को उसकी सहर ज़रूर नमूदार होती है, और मुझे यकीन है कि इस रात की सहर ज़रूर होगी। लाजवर्द बड़े पुरआज़्म लहजे में बोली। इंशाअल्लाह बेटा, मेरी दुआ है कि यह सुबह उम्मीद बहुत जल्द तुलू हो। शाहनवाज ने उसके सर पर हाथ रखकर प्यार से कहा। लाजवर्द उनसे एक अच्छी किताब लेकर चली आई। मौसम के तेवर बहुत खतरनाक हो रहे थे। जोरदार हवाओं के साथ बड़ी जोरदार बारिश हो रही थी। सभी सरे शाम घर वापस आ गए थे। शहबाज के कम सर में शदीद दर्द हो रहा था। उसने रात का खाना भी नहीं खाया। लाजवर्द खाना सर्व करने के बाद उनके लिए चाय और टैबलेट लेकर आई थी। उनको चाय देने के बाद वो वापस चली गई। डाइनिंग टेबल से बर्तन वगैरह समेटे, बर्तन धोकर खुश करके रखे, किचन समेटा और फिर इशा की नमाज वहीं लाउंज में अदा की। रात 10 बजे के करीब वो कमरे में आई तो देखा शहबाज दर्द से बेहाल बेड पर बार बार सर पटक रहा था। वो कुछ देर खामोशी से देखती रही, फिर रहा ना गया तो डरते डरते करीब आई। अगर ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो मैं आपका सर दबा दूं? उसने झिझकते हुए कहा। शहबाज जो आम हालात में उसे पास कभी ना आने देते, इस वक्त दर्द की शिद्दत से बेहाल होते सर हिलाकर इजाज़त दी। लाजवर्द सिमट कर बेड पर उसके सिरहाने बैठी और हौले हौले उसका सर दबाने लगी। उसके पेशानी बहुत गर्म हो रही थी। उसके हाथों का लफ्ज़ शहबाज को बहुत पुरलुत्फ महसूस हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो गुनूदगी में चला गया। लाजवर्द जो दिन भर की थकी हुई थी, न जाने किस वक्त उसका सर दबाते दबाते नींद में चली गई। रात के पिछले पहर शहबाज की आंख खुली तो देखा वो उसके बेड पर उसके सिरहाने आड़ी तिरछी सोई हुई थी। उसकी हसीन लंबी जुल्फें उस पर साया फिगन थी। सोते में उसका मासूम हुस्न तौबा शिकन लग रहा था। शहबाज ने उसके हुस्न से आंखें चुराने की सरतोड़ कोशिश की, मगर कब तक। हुस्न तौबा शिकन, रिश्ता शरई कानूनी, और रात फंसू खेज। वो अपनी फितरी जज्बों पर काबू न रख पाया और उसी लम्हे लाजवर्द की आंख खुल गई। अपनी पोजीशन देखकर वो बुरी तरह सटपटाई। उसने फौरन उठना चाहा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दो मजबूत हाथों ने बढ़कर उसे अपनी आगोश में समेट लिया और फिर उसकी हर मज़ाहमत बेकार होती चली गई, और फिर दोनों जज्बात की रों में बहते चले गए, और रात धीरे धीरे उन पर प्यार की बारिश बरसाती गुजरती चली गई। सुबह लाजवर्द की आंख वक्त मुकर्ररा पर खुली। देखा तो वो अभी तक शहबाज की बाहों में थी
और वह बेसुध पड़ा सो रहा था। उसे बेतरह शर्म आई। फिर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। शावर लेने के बाद उसने नमाज अदा की और किचन में चली आई। रात का खुमार अभी भी उसकी आंखों में झलक रहा था। उसे खुद से भी शर्म आ रही थी। वो खुद में शहबाज का सामना करने की हिम्मत नहीं पा रही थी। सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए आ चुके थे। शहबाज भी बैठा था और बहुत चुप चुप सा था। रात की बेख्तियारी ने उसे चुप लगा दी थी। लाजवर्द ने झुके सर के साथ नाश्ता रखा। शहबाज खुद भी उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। क्या बात है पुत्र, बड़े चुप चुप हो? तबीयत कैसी है अब? बेबे ने उसकी खामोशी को महसूस किया। ठीक हूँ बेबे, अब वैसे ही सुस्ती महसूस कर रहा हूँ, उसने आहिस्तगी से कहा। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो छुट्टी कर लो बेटा। बेगम शाहनवाज की ममता बेकरार हुई। नहीं अम्मा, अब ऐसी भी कोई बात नहीं, वो मुस्कुराया। अरे बेगम, मेरा बेटा माशाल्लाह घबरू जवान है, ऐसी छोटी मोटी बीमारियों में थोड़ा बिस्तर पकड़ेगा। शाहनवाज ने बेटे को प्यार से देखा। जी बाबा जान, बिल्कुल, अब इतना भी नाजुक नहीं हूँ। वो भी उनकी शरारत पर मुस्कुरा दिया। बीमारी को भी नॉन सीरियस नहीं लेना चाहिए लाला। अगर आप बेहतर फील नहीं कर रहे तो छुट्टी कर लें, मैं सब संभाल लूँगा। अरबाज ने तशवीश से कहा। अरे नहीं बाबा, तुम लोग तो यूं ही परेशान हो रहे हो, मैं ठीक हूँ। शहबाज ने अरबाज को मुतमईन किया और सभी मुतमईन अंदाज में नाश्ते की तरफ मुतवज्जे हो गए। संगीन खान ने गाड़ी पोर्च में खड़ी की और तेज तेज कदमों से अंदर जाते हुए चौंक पड़ा। अरीबा खान सुर्ख गुलाबों के कंज में सुर्ख लिबास पहने खुद भी खिला हुआ गुलाब लग रही थी। हाथों के हाले में थोड़ी रखे सोचों में डूबी हुई इतनी दिलकश लग रही थी कि संगीन खान को अपनी नजरें चुराने के लिए खुद से बाकायदा लड़ना पड़ा। नजर हटने से साफ इनकारी थी। बामुश्किल नजरें उस परी पैकर से हटाईं और अंदर की जाने बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। अंदर दाखिल होते हुए बाबा जान से सामना हुआ तो झट सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, चेंज करके लॉन में आ जाओ, चाय वहीं पियेंगे, अदील खान ने कहा। 10 मिनट बाद वो बाहर लॉन में आया तो बाबा जान और अरीबा लॉन चेयर्स पर बैठे थे। मुलाजिम चाय टेबल पर रखकर चला गया। अरीबा खान ने चाय बनाकर अदील खान को दी। थैंक यू बेटा। अदील खान ने कप थाम लिया। अरीबा ने दूसरा कप संगीन खान की तरफ खिसकाया। उसने जेरे लब मुस्कुराहट से कप थाम लिया। अदील खान और संगीन खान बिजनेस मैटर डिस्कस करते रहे और वो खामोशी से चाय पीती रही। उनके गुफ्तगू से वो मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक़ लग रही थी। कुछ देर बाद वो एक्सक्यूज़ करती अंदर चली गई। संगीन की निगाहों ने तादेर उसका ताक़ुब किया। टेक इट ईजी बेटा, हिम्मत कभी मत हारना, जीत हमेशा सच्चे और बहादुर लोगों के मुकद्दर होती है। अदील खान ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए तसल्ली दी। जी बाबा, मैं डिसहार्ट नहीं हूँ। उसने मुस्कुराते हुए अदील खान के हाथों पर हाथ रख दिया और दोनों खिलकर मुस्कुरा दिए। लाज की तबीयत कुछ सुस्त सी थी, कोई काम सही तौर पर नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से अम्मा और बेबे से डांट भी खा चुकी थी। अभी भी वो शहबाज के कपड़े प्रेस कर रही थी कि उसका सर बुरी तरह चकराया। उसने इधर उधर हाथ पैर का सहारा तलाश करना चाहा मगर बेसूद। वो जमीन बोस हो चुकी थी। शहबाज फौरन लपक कर उसकी तरफ आया। देखा तो वो बेहोश हो चुकी थी। वो फौरन बाहर को लपका और कुछ ही देर में बाबा और अम्मा उसके कमरे में थे। इससे उठाकर बेड पर लेटाओ, शाहनवाज खान ने शहबाज से कहा और उसने फौरन अपने मजबूत बाजुओं में उसे उठाकर बेड पर लेटा दिया। शाहनवाज खान ने फौरन अपने फैमिली डॉक्टर यजदानी को फ़ोन किया और 15 मिनट बाद वो अपने मेडिकल बॉक्स के साथ वहां मौजूद थे। उन्होंने कुछ देर उसका चेकअप किया, फिर खड़े होकर शाहनवाज के परेशान चेहरे पर नजर डाली। टेक इट ईजी, परेशानी की कोई बात नहीं, वीकनेस की वजह से बेहोश हुई हैं। आप अपनी बहू को किसी लेडी डॉक्टर के पास लेकर जाएं, आप दादा बनने वाले हैं, डॉक्टर यजदानी ने कहा। शाहनवाज बेतरह खुश हुए। बेगम शाहनवाज के एहसासात अजीब से हो रहे थे। वो खुश भी थी कि दादी बन रही हैं, मगर उस खुशी को पूरी तरह महसूस नहीं कर पा रही थी। शहबाज भी बहुत खुश था। बाप बनने का एहसास बहुत अनोखा और खुशकुन था। डॉक्टर यजदानी ने कुछ टॉनिक लिख कर दिए और इजाज़त लेकर चले गए। कुछ देर बाद लाजवर्द ने आंखें खोली और उठने की कोशिश की। शाहनवाज उस पर झुक गए। लेटी रहो बेटी, अब कैसा फील कर रही हो? उन्होंने बहुत प्यार से पूछा। ठीक हूँ बाबा जान, वो बदिक्कत मुस्कुराई। ओके टेक केयर, अब आराम करो। वो दोनों कमरे से निकलते चले गए। उनके जाने के बाद वो आहिस्तगी से उठी। शहबाज सोफे पर बैठे थे। अभी वो उठी थी कि सर दोबारा चकराया और वो फौरन बेड पर बैठ गए। लेटी रहो। शहबाज उठकर उसके पास आया। तुम चाहे अपना ख्याल रखो या ना रखो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, मगर अब तुम्हारी कोख में मेरा बच्चा पल रहा है और मैं इस बात को हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगा कि अगर मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुँचा। शहबाज की बातों से बैक वक्त हैरत और खुशी से दो चार कर दिया।
शहबाज करवट बदल कर लेट गया और कुछ देर में नींद में गाफिल हो गया। लाजवर्द को मारे खुशी के नींद ही नहीं आ रही थी। घर भर को अगरचे उसका वजूद नागवार था, मगर उसकी कोख में परवरिश पाने वाले बच्चे के लिए सब बेताब हो रहे थे। वो उनके दुश्मन की बेटी सही, मगर बच्चा तो उनका अपना खून था, इसीलिए सब बेकरार हो रहे थे। बेबे और अम्मा तो अभी से बच्चे के लिए छोटे मोटे कपड़े बनाने में लगी हुई थी। अरबाज ने खिलौनों के ढेर जमा कर दिए थे। शहबाज खुद बहुत एक्साइटेड था। अरीबा खान को जब पता चला कि वो फुप्पो बनने वाली है तो वो बहुत खुश हुआ। खुशी तो अदील खान और संगीन खान को भी थी। ऐसी हालत में भी लाजवर्द आराम नहीं करती थी। बाकी कामों के लिए तो मुलाजिम थे, मगर खाना अब भी वही पकाती थी, क्योंकि सबको उसी के हाथ के खानों की आदत हो गई थी। एक दिन बावर्ची ने खाना बनाया और किसी ने भी सही तरीके से खाना नहीं खाया, इसीलिए लाजवर्द खुद खाना बनाती थी। अरीबा खान बेड पर लेटी टीवी प्रोग्राम देख रही थी। संगीन खान वार्डरोब खोले अपने लिए कपड़े सिलेक्ट कर रहे थे। वो रात से ही अपने कपड़े प्रेस कर कर रख देते थे। अरीबा खान ने आज तक उनका कोई काम नहीं किया था। अब भी वो बेनियाजी से टीवी देख रही थी और संगीन खान अपने कपड़े प्रेस कर रहे थे। मुलाजिम तो मौजूद थे, मगर शादी के बाद अपने छोटे मोटे काम मुलाजिम से करवाकर वो अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते थे। अरीबा के ज़मीर ने उसे मलामत करने की कोशिश की, मगर उसने ज़मीर की आवाज़ को टीवी की आवाज़ तेज़ करके दबाने की कोशिश की और ख़ुद को मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक़ कर लिया। संगीन खान ने कपड़े प्रेस करके हैंग किए। उनके सर में दर्द हो रहा था। वो सोफे पर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता अपनी कनपटियां दबाने रहे। फिर उसने अरीबा खान को मुखातिब करके कहा, प्लीज़ एक कप चाय बना दे, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मुलाजिम इस वक्त सो रहे हैं, जगाना मुनासिब नहीं है। अरीबा ने उसकी फरमाइश पर हैरत से उसे देखा और निहायत रुखाई से जवाब दिया, सॉरी, मैं खुद को आपके कामों के लिए पाबंद नहीं समझती। इस कोरे जवाब पर संगीन खान का जी चाहा उस हसीन मगर पत्थर दिल लड़की को बुरी तरह झिंझोड़ दे, मगर बेबसी से होंठ काट कर रह गया। आई एम सॉरी, मुझे ख्याल नहीं रहा था। उसने भी तंज़िया लहजे में कहा, ख्याल रखा कीजिए, मुझे इस तरह की बेतकल्लुफियाँ पसंद नहीं। बेरुखी की इंतहा थी। संगीन खान देखता ही रह गया, फिर खुद ही उठकर चाय बनाने चला गया। अरीबा खान ने तंज़िया मुस्कुराहट के साथ टीवी ऑफ किया और कंबल तान कर सोने की कोशिश करने लगी, मगर न जाने क्यों उसका दिल बुरी तरह डिस्टर्ब हो रहा था। शायद अपने रवैये पर नादिम था। वक्त धीरे धीरे सिरक रहा था। लाजवर्द के साथ घर वालों के रवैये में थोड़ी लचक आ गई थी, मगर वो खुश फहम नहीं हुई थी। जानती थी कि ये सब उसकी वजह से नहीं बल्कि बच्चे की वजह से है। ये रवैये अपनी अमानत वसूल होने के बाद सर्द हो जाएंगे। शहबाज का रवैया भी पहले जैसा रूड नहीं था। अगरचे नरमी और मोहब्बत तो नहीं, मगर पहले जैसी सख्ती भी मफकूद थी। मगर ये तब्दीली लाजवर्द को और जर्द रंज कर रही थी कि इस बच्चे की अहमियत है जो अभी इस दुनिया में नहीं आया, और मैं जो इतनी तकलीफ उठाकर इसे इस दुनिया में लाने का सबब बन रही हूँ, मेरी कोई अहमियत नहीं। इन तकलीफ दे सोचों ने उसे बहुत डिप्रेस कर रखा था। हेलो बेटा, क्या हो रहा है? आदिल खान ने अरीबा खान के पीछे खड़े होकर कहा तो वो बुरी तरह चौंक गई और पलटकर आदिल खान को देखा। कुछ नहीं अंकल, मैं ज़रा इन पौधों की कटाई कर रही थी, काफ़ी रफ हो रहे थे। अरीबा मुस्कुराई। एक बात कहूँ बेटा? आदिल खान ने इजाज़त चाही। अरीबा खान ने उनकी तरफ देखा। जी अंकल, ज़रूर कहिए। बेटा, अगर आप मुझे अंकल के बजाय बाबा जान कहें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। आदिल खान ने शफकत से कहते हुए उसे शर्मिंदा कर दिया। सॉरी अंकल, ओ सॉरी अगेन बाबा जान। उसे जल्दी से कहा तो आदिल खान हंस पड़े और फिर दोनों लॉन चेयर्स पर बैठकर बातें करने लगे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, अगर एक बेटी चली गई तो दूसरी बेटी आ गई है, आदिल खान ने प्यार से उसे देखते हुए कहा। अरीबा मुस्कुरा दी। वैसे भी संगीन खान के साथ उसका रवैया जैसा भी था, मगर आदिल खान का वो बहुत लिहाज करती थी और उनके साथ उसका रवैया बहुत अच्छा था। लाजवर्द इशा की नमाज पढ़कर कमरे में आई तो उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उसको हल्का हल्का पेन हो रहा था। कुछ ही देर में दर्द बढ़ने लगा था। उसने शहबाज की तरफ देखा। उसी वक्त शहबाज भी उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ और फिर उसकी खतरनाक हद तक जर्द रंगत को देखकर घबरा गया और फौरन उसकी तरफ आया। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे दर्द हो रहा है। तकलीफ की शिद्दत से उसका रंग जर्द पड़ गया। ओके, मैं अम्मा को बुलाता हूँ ताकि तुम्हें हॉस्पिटल ले जाए, शहबाज ने कहा और जाने लगा कि लाजवर्द ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरत से पलटा। शहबाज साहब, अगर मुझे कुछ हो गया तो एक बार मेरी कब्र पर फातिहा पढ़ने ज़रूर आइएगा प्लीज़। उसके हसरत भरे लहजे ने शहबाज को अंदर तक लर्जा दिया और उसने आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रखा। प्लीज़, ये वक्त इन बातों का नहीं।
اس کی اس ایک بات نے شہباز خان کے اندر تک دہشت پھیلا دی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا گیا اور اماں کو بتا کر باہر گاڑی نکالنے بھاگا۔ اماں بابا جان بھی بھاگتے ہوئے آئے۔ اس کی حالت نے ان کے ہاتھ پاؤں پھلا دیے۔ شہباز نے اندر آ کر اسے اٹھایا اور سہارا دے کر گاڑی تک لے آیا۔ اماں بیبے کو بتا کر ان کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی۔ شہباز تیز رفتاری سے گاڑی اسپتال کی طرف دوڑا رہا تھا۔ لاجورد تکلیف کی شدت سے سر پٹک رہی تھی اور پھر اس کا سر ڈھلک کر اماں کے کندھے پر آ گرا، اور اس وقت اماں کا دل اتنا گداس ہو رہا تھا کہ ساری نفرت بالائے طاق رکھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر ہولے ہولے دبانے لگی۔ لاج کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اسپتال پہنچ کر اسے فوری طور پر ایمرجنسی میں لے جایا گیا اور پھر ڈیوٹی پہ موجود ڈاکٹرز نے اس کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اسے فوراً آپریشن تھیٹر میں منتقل کیا۔ شہنواز خان نے عدیل خان کو بھی مطلع کر دیا اور وہ بھی اریبہ خان اور سنگین خان کے ہمراہ فوراً ہسپتال پہنچے۔ ڈاکٹرز آپریشن تھیٹر میں مصروف ہو چکے تھے اور باہر ان سب کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ سب اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ عدیل خان پلر کے ساتھ ٹیک لگا زرد چہرہ لیے کھڑے تھے۔ سنگین خان نے انہیں کندھوں سے تھام کر بینچ پر بٹھایا۔ اریبہ خان بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر انہیں تسلی دینے لگی۔ شاہنواز بے قراری سے ٹہل رہے تھے اور اماں چپ بیٹھی تھیں۔ انہیں اپنی ہر زیادتی یاد آ کر پشیمان کر رہی تھی۔ ان کا دل اللہ سے دعا گو تھا، لاجورد کی صحت کے لیے۔ وہ لڑکی جسے آج تک انہوں نے نفرت سے دھتکارا تھا، اس وقت وہ انہیں اریبہ خان کی طرح عزیز ہو گئی تھی۔ شہباز گمسم کھڑا تھا۔ اس کے کانوں میں لاجورد کے آخری الفاظ باز گشت بن کر گونج رہے تھے اور اسے مزید بے قرار کر رہے تھے۔ 3 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور لیڈی ڈاکٹر تھکے ہوئے چہرے کے ساتھ باہر آئی۔ شہباز لپک کر ان تک پہنچا۔ باقی سب کے دل لرزے۔ مسٹر شہباز، آپ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کی مسز نے 2 جڑواں بیٹوں کو جنم دیا ہے، مگر ڈاکٹر چند پل کے لیے خاموش ہوئی اور شہباز کو اپنا دل سینے میں بند ہوتا محسوس ہوا۔ پلیز ڈاکٹر، اس کا لہجہ ملتجی ہو گیا۔ مگر شہباز صاحب، آپ کی مسز کی حالت ٹھیک نہیں ہے، انہیں ہم ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، آپ لوگ دعا کریں۔ ڈاکٹر انہیں تسلی دیتی ہوئی دوبارہ اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد نرس گلابی کمبل میں لپٹے 2 گول مٹول بچے ان کو دے کر چلی گئی، وہ معصوم فرشتے جنہیں اپنی جان پر کھیل کے اس نے جنم دیا تھا۔ شہباز نے بچوں کو دیکھا تو اسے ایک بار پھر اپنی کہی بات یاد آئی، جب اس نے سنگ دلی سے لاجورد کو کہا تھا، تم چاہے اپنا خیال رکھو نہ رکھو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مگر اب تمہاری کوکھ میں میرا بچہ پل رہا ہے اور میں اس بات کو ہرگز معاف نہیں کروں گا اگر میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچا۔ اور واقعی لاجورد نے اس کے بچوں کو کوئی نقصان پہنچنے نہیں دیا تھا، مگر پھر بھی اس کا ناقابل تلافی نقصان کر گئی تھی۔ آج اس لمحے اسے لگا وہ اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی ہار رہا ہے۔ وقت جوں جوں گزرتا جا رہا تھا، ان کے چہروں پر خوف کے سائے گہرے ہو رہے تھے، سب کی بے قراری میں اضافہ ہو رہا تھا، سبھی ندامت سے چور اس کے لیے دعا گو تھے، جسے آج تک درخور اعتنا تک نہ سمجھا تھا۔ سنگین خان کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں۔ لاجورد اس کی اکلوتی بہن اسے بہت عزیز تھی۔ وہ بار بار لب کاٹ رہا تھا، پھر ہولے ہولے چلتا شہباز کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹھ جاؤ شہباز، اللہ خیر کرے گا۔ شہباز نے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے گلے لگ گیا اور ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ آج وہ اس شخص کے سینے میں منہ چھپائے دل کا بوجھ ہلکا کر رہا تھا جس سے وہ شدید ترین نفرت کرتا تھا۔ سنگین خان نے اسے کھل کر رونے دیا اور پھر آرام سے اسے بینچ پر بٹھا دیا، اور پھر جب ان کی آنکھوں میں امید کے دیے بجھنے لگے تھے کہ آپریشن تھیٹر کا دروازہ ایک بار پھر کھلا اور اس بار لیڈی ڈاکٹر کے چہرے پر تھکاوٹ کے باوجود ہلکی مسکراہٹ تھی۔ شہباز بے قراری سے لپکا تھا۔ مبارک ہو شہباز صاحب، آپ کی مسز کو ہوش آ گیا ہے اور اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر نے گویا ان کے نیم مردہ جسموں میں جان ڈال دی تھی۔ سبھی کے چہروں پر مسرت کی لہر دوڑ گئی اور سبھی ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ لاجورد کو روم میں شفٹ کیا گیا۔ سبھی فردن فردن اس کے پاس آئے، پھر بچوں کو لاجورد کے پاس لایا گیا اور انہیں دیکھ کر اس کے سارے زخم مند مل ہوتے چلے گئے۔ پھر بابا جان نے اریبہ سے کہا کہ وہ بچوں کو لے کر گاڑی میں بیٹھے۔ وہ بچوں کو بیبے کے پاس لے جانا چاہتے تھے۔ بیبے لاؤنج میں بے قراری سے بیٹھی تھی، بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، سخت بے چینی کا شکار ہو رہی تھی۔ اتنے میں شاہنواز اندر داخل ہوئے اور بچوں کو ان کی گود میں ڈال دیا۔ مبارک ہو بیبے، اللہ نے ایک حیدر خان آپ سے لے لیا اور آپ کو ایک ساتھ 2 حیدر خان عطا کر دیے۔ ان بچوں کے صدقے میں ان کی ماں کو معاف کر دیں بیبے، اپنے ناکردہ گناہوں کی بہت سزا جھیل لی، بڑی لمبی مسافت طے کی ہے اس نے، بڑی اذیتیں سہی ہیں،
कभी हरफ शिकायत जुबान पर नहीं लाई। अब भी जान पर खेल कर उसने ये दो नन्हे मासूम फरिश्ते तोहफे में दिए हैं। शाहनवाज की आवाज भुर्रा गई। बेबे ने बच्चों को गोद में लेकर बेकरारी से चूमा। उनका दिल लाजवर्द के लिए भी साफ हो चुका था। अब वो उससे मिलने को बेचैन थी। दूसरी तरफ मलिक बहादुर और उनके बेटे हसद की आग में जल रहे थे। देख लें बाबा, आप कह रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा। अदील खान की बेटी वहां कभी बहू का दर्जा नहीं पा सकेगी, मगर वो तो वहां और भी मजबूत हो गई है। वो एक नहीं, इकट्ठे दो दो वारिस पैदा करके अपने पाँव मजबूत कर चुकी है, और यहाँ हम सिर्फ अपने दिलों को झूठे तसलियों से बहला रहे हैं। मलिक जब्बार के लहजे में जख्मी सांप की सी फनकार थी। हाँ पुत्र, सारी बाजी उनके नाम हो गई है। मलिक बहादुर शिकस्ता लहजे में बोले, मगर अब इस बाजी को मैं अपनी जीत में तब्दील करूंगा। इतनी आसानी से मैं उन लोगों को खुशियां मनाने नहीं दूंगा। मलिक जब्बार के लहजे में महसूस की जाने वाली सफाकी और दरिंदगी थी। क्या मतलब पुत्र, तू क्या करना चाहता है? मलिक बहादुर ने परेशानी से बेटे को देखा। कम अज कम आपकी तरह सिर्फ अल्फाज से दिल नहीं बहलाऊंगा। मलिक जब्बार तेजी से बाहर को लपके। मलिक बहादुर ने भी उसकी तकलीद की और मलिक वहाब ने भी उसकी तकलीद की और मलिक बहादुर नासमझी की कैफियत में खड़े रह गए। बेबी अस्पताल जाने के लिए तैयार होकर पोर्च में आई। ड्राइवर ने गाड़ी निकाली। अरीबा खान ने दोनों बच्चों को बमुश्किल थाम रखा था। मलिक शाहनवाज तेजी से बाहर पोर्च तक आए और कबल इसके कि काफिला खुशियों से सरशार गाड़ी तक पहुंचता, मलिक जब्बार और मलिक वहाब की गाड़ी आंधी और तूफान की तरह खुले गेट से अंदर दाखिल हुई। चौकीदार चूंकि उनके जाने के लिए गेट खोल चुका था, इसलिए भी वो सीधा अंदर दाखिल हुए थे। खतरनाक अंदाज में गाड़ी पोर्च में खड़ी की और जोरदार आवाज से दरवाजा खोलकर नीचे उतर आए। मलिक शाहनवाज और बेबे ने उस बदतमीजी पर हैरत से उन्हें देखा। यह क्या बदतमीजी है जब्बार? मलिक शाहनवाज गुस्से में आ गए। अरे अभी से घबरा गए? अभी हमने बदतमीजी की ही कहाँ है ताया हुजूर। उनके लहजे में तमस्खुर था। ये तुम किस अंदाज में बात कर रहे हो? क्या हो गया है तुम दोनों को? बेबे परेशान हुई। बहुत तड़पाया है तुम लोगों ने हमें। हर हर मौके पर आप लोग हमसे बरतर रहे। हर जगह हर मौके पर ताया को अव्वलियत मिलती रही और हम पस मंजर में रहे। हम चुप रहे, फिर रिश्तेदारियां करते हुए भी हमें मुकम्मल नज़रअंदाज किया। शहबाज का रिश्ता अदील खान की बेटी से कर दिया, हालांकि मेरी बहन इसके जोड़ की थी। और फिर अरीबा खान पर ज्यादा हक मेरा बनता था और आप लोगों ने उसे संगीन खान से ब्याह दिया। कहाँ कहाँ हमारी हक तलफी हुई, मगर हम खामोश रहे। अब और नहीं रहेंगे। मलिक शाहनवाज बड़ी देर से मलिक जब्बार का गुस्ताखाना लहजा बर्दाश्त कर रहे थे। तुम लोगों को शदीद गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कह रहे हो। कोई गलतफहमी नहीं हुई। चलो खैर, मिट्टी पाओ उस किस्से पर, क्योंकि आज के बाद कोई फजीहता खड़ा ही नहीं होगा। आज ये सारा किस्सा ख़त्म हो जाएगा। मलिक जब्बार के लहजे में बेरहमाना संगदिली थी। मलिक शाहनवाज चौंक उठे। क्या मतलब है तुम्हारा इन सब बातों से? मतलब ये है प्यारे ताया हुजूर कि आज मैं हर किस्सा अपने वजूद समेत ख़त्म करने आया हूँ। आज आपके पूरे ख़ानदान को ख़त्म करने की नीयत से आया हूँ। उससे तंजिया मुस्कुराते हुए रिवॉल्वर निकाला। मलिक वहाब भी अपना रिवॉल्वर निकाल चुका था। और हाँ, मरने से पहले एक और उलझन भी सुलझा दूँ। संगीन खान सच कहता था कि वो हैदर खान का कातिल नहीं है। वो बेचारा तो एक चिड़िया का कत्ल नहीं कर सकता, कहाँ एक इंसान को कत्ल करना। तो फिर हैदर खान का कातिल कौन है? मलिक शाहनवाज का लहजा हैरानी से पुर था। ये जीदारी का काम मलिक जब्बार के सिवा और कौन कर सकता है भला? मलिक जब्बार ने मकरूह कहकर लगाते हुए कहा। बेबे और अरीबा को तो सख्ता हो गया था और मलिक शाहनवाज हैरत की ज्यादती से गिंग हो गए। तो तुमने ये सब कुछ क्यों किया? मलिक शाहनवाज शौक से निकले तो हकला कर बोले। जाहिर सी बात है, आप लोगों को कमज़ोर करने के लिए, आपकी और अदील खान की दुश्मनी से फ़ायदा उठाने के लिए। मगर बुरा हुआ आप दोनों की बुज़दिलाना फितरत का। बजाय इसके कि कत्ल का बदला लेते, उल्टा रिश्तेदारियां जोड़ बैठे। बुज़दिलाना लोग बुज़दिलाना हरकतें करते हैं। मलिक जब्बार ने एक फलक शगाफ कहका लगाया और ये अकलख रिवॉल्वर उन पर तान लिया। बस बहुत हो गया, अब तुम तीनों इन बच्चों समेत मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरीबा ने तो खौफ की मारे आंखें बंद कर ली और बच्चों को खुद से भींच लिया। बेबे अल्लाह को याद करने लगी और मलिक शाहनवाज इस वक्त खुद को सख्त बेबस महसूस कर रहे थे। मगर इससे पहले कि वो उन पर फायर करता, संगीन खान ने निहायत खामोशी से उसकी गर्दन पर पीछे से आकर पिस्तौल रख दी। खबरदार, मामूली सी भी हरकत की तो जान से मारने में एक लम्हे की ताखिर नहीं करूंगा। उसके लहजे में इतनी ठंडक थी कि मलिक जब्बार की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। मलिक वहाब को अरबाज ने कवर कर लिया। सिचुएशन निहायत फिल्मी अंदाज में तब्दील हो चुकी थी।
अरीबा ने पट आंखें खोल दी थी। इतने में एसपी ताहिर अली के साथ चंद सिपाही आए और दोनों को हथकड़ी डालकर ले गए। मलिक शाहनवाज के कदम बुरी तरह डगमगाए। संगीन खान ने फौरन लपक कर उन्हें थामा और सब अंदर ड्राइंग रूम में आ गए। अभी उनके आसाब बहाल नहीं हुए थे। ये तुम दोनों को किस तरह खबर हो गई और पुलिस किस तरह पहुंची? मलिक शाहनवाज जरा संभले तो हैरत से उनसे इस्तफसार किया। अरबाज और संगीन खान मुस्कुरा दिए। ये सब कमाल हमारी अरीबा का है। क्या मतलब? अरीबा ने तुम लोगों को कैसे बताया? अरीबा ने निहायत समझदारी से काम लेते हुए मेरे मोबाइल पर कॉल की और जब मैंने कॉल रिसीव की, अरीबा आगे से नहीं बोल रही थी, मगर फिर चंद आवाज़ें नुमायां होने लगी और जब मैंने गौर किया तो सूरत हाल वाज़ेह हुई और हमने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर यहाँ की तरफ दौड़ लगाई। रास्ते में संगीन खान ने अपने दोस्त एसपी ताहिर अली को फ़ोन करके सारी सूरत हाल बताई। मैंने मोबाइल ऑफ नहीं किया था, इसलिए मलिक जब्बार की सारी बकवास हम तक पहुंच रही थी। हमने गाड़ियां घर से कुछ फासले पर रोक दी ताकि उसे शक न हो जाए और वो आप लोगों को नुकसान न पहुंचा दे। यूं हम लोग बर वक्त पहुंच गए और बाकी के हालात आप लोगों के सामने हैं। अरबाज ने बड़ी ड्रामाई अंदाज में पूरी सूरत हाल उनके गोश गुजार की और मलिक शाहनवाज उन तीनों की समझदारी के कायल हो गए। अब तो आप लोगों को यकीन आ गया ना कि मैं हैदर खान का कातिल नहीं हूँ? संगीन खान ने संजीदगी से कहा तो उनके सर निदामत से झुक गए। अरीबा खान तो उससे निगाह नहीं मिला पा रही थी। हम तुमसे शर्मिंदा हैं पुत्र, हो सके तो हमें माफ़ कर देना। बेबे ने उसके आगे हाथ जोड़े तो संगीन खान ने तड़प कर उनके बंधे हाथ खोलकर अपनी आंखों से लगा लिए। आप मुझे गुनहगार मत करें बेबे, इस पर कसूर आप लोगों का नहीं है। हालात जिस रुख पर थे, आपकी जगह कोई भी होता उसके जज्बात ऐसे ही होते। मुझे आप लोगों से कोई गिला नहीं। संगीन खान ने बड़ेपन का सबूत देते हुए उनको माफ़ कर दिया। अरबाज खान ने भी आगे बढ़कर संगीन खान से माफ़ी मांगी तो संगीन खान ने उसे गले लगा लिया। अभी ये जज्बाती सीन न जाने कब तक जारी रहते कि बच्चों ने बेचैन होकर रोना शुरू कर दिया। सभी उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए। इस मारा मारी में इन मासूमों को तो हम भूल गए, बेचारे भूख से रोने लगे हैं, चलो जल्दी करो। सभी उजरत में अस्पताल के लिए रवाना हुए। अस्पताल में अरबाज ने शहबाज और अम्मा को भी सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। वो दोनों भी सुनकर हैरान रह गए। अदील खान ने बेख्तियार संगीन खान को गले लगाया। लाजवर्द की आंखें भी खुशी से चमक उठी। आज वो सब मलिक फैमिली के आगे सुरखरू हुए थे। बेबे ने आगे बढ़कर लाजवर्द से माफ़ी मांगी। मैं तो शायद तुमसे माफ़ी मांगने के काबिल भी नहीं, मगर बेबे ने कहा तो लाजवर्द ने तड़प कर उनकी बात काटी। प्लीज़ बेबे, मुझे गुनहगार मत करें, कसूर आपका नहीं था, शायद हमारी तकदीर में ये सब लिखा था। शुक्र है कि अभी ज़्यादा देर नहीं हुई। माहौल एकदम से खुशगवार हो गया। दोनों बच्चे अमन के पैगंबर बनकर आए थे। अरबाज बहुत चुप चुप सा था। जब सब लोग अपनी अपनी बातों में मसरूफ़ हो गए तो वो चुपके से खिसक कर लाजवर्द के करीब आया। भाभी, मैं आपके साथ बहुत रूड हुआ हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। उसने कहने के साथ ही उसके आगे हाथ जोड़ दिए। लाजवर्द ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ पकड़े और कहा, एक शर्त पर माफ़ी मिलेगी। कैसी शर्त? अरबाज ने हैरत से पूछा। उस तस्वीर वाली का पूरा बायोडाटा बताओ दो तो, उसने शरारत भरे अंदाज में कहा। ओह, आप अब तक उस तस्वीर को भूली नहीं हैं? वो मुस्कुराया। टालो नहीं, वादा करो सब बताओगे। लाजवर्द ने इसरार किया। वादा, बल्कि पक्का वादा। आखिर को तस्वीर वाली को घर भी लाना है और उसके लिए आपकी मदद की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। पहले मैं मेल तो लूँ कि आया वो माँ बदौलत की देवरानी बनने के काबिल है भी या नहीं। लाजवर्द ने शाहाना अंदाज में कहा तो अरबाज आंखें निकाल कर रह गया। लाजवर्द हंस दी। दोनों बच्चे एक से दूसरी गोद में मुंतकिल होते रहे। सब शाम को रुखसत हुए। अम्मा और शहबाज लाजवर्द के पास रह गए थे। शहबाज को अब तक उससे तन्हाई में बात करने का मौका नहीं मिला था। अगले दिन लाजवर्द को घर लाया गया। शहबाज मौके की तलाश में था कि वो लाजवर्द से माफ़ी मांगे, मगर अब लाजवर्द अकड़ दिखा रही थी। उसे ऐसा कोई मौका नहीं दे रही थी। जब वो कमरे में आता तो सोती बन जाती। उसने लाख जतन किए, मगर दूसरी तरफ से भरपूर लाताल्लुक़ी दिखाई जा रही थी। शहबाज को वाक़तन दांतों पसीने आ गए थे। अब लाजवर्द की बारी थी और वो भी जी भर भर के बदले ले रही थी। उसे एहसास था कि वो शर्मिंदा है, मगर अब उससे बदले ले रही थी। शहबाज जब भी उसे मुखातिब करने की कोशिश करता, वो खुद को बच्चों में मसरूफ़ कर लेती और उसकी बात मुंह में ही रह जाती। अरीबा खान तब से अब तक शर्मिंदगी के हिसार में थी। अब वो सोच रही थी कि संगीन खान से माफ़ी कैसे और क्यों कर मांगे, और क्या वो उसे इतनी आसानी से माफ़ कर देगा? शायद नहीं। संगीन खान ने तो उस रोज़ के बाद से चुप साध ली थी। सुबह का गया, रात को घर में दाखिल होता और किसी से बात किए बिना बेडरूम का रुख करता
اور جب اریبہ خان کمرے میں داخل ہوتی تو وہ گہری نیند میں ہوتا۔ ہمت تو اس کی ویسے بھی نہیں ہو رہی تھی، اور اب سنگین خان کے ایسے رویے سے وہ بالکل ہی ہمت ہار گئی تھی۔ الفاظ ترتیب دیتی کہ اسے یہ کہنا ہے، کیسے کہنا ہے، مگر جو ہی وہ گھر میں داخل ہوتا، اس کے چہرے کے سرد اور لاتعلق تاثرات کو دیکھ کر سب الفاظ بھگ سے اس کے دماغ سے نکل جاتے۔ وہ سخت جھنجھلا رہی تھی۔ یا اللہ، یہ آنکھ مچولی کب تک جاری رہے گی؟ عدیل خان بھی حج پر جا چکے تھے، ورنہ شاید انہی سے مدد لے لیتی۔ خود تو اس میں حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا۔ بی بی نے اعلان کیا تھا کہ لاجورد کا غسل صحت اور بچوں کا عقیقہ عید کے روز ہوگا، تاکہ ساری فیملی ممبرز اور خاندان کے لوگ خوشیوں کے موقع پر اکٹھے ہو جائیں۔ گھر میں عید کے ساتھ ساتھ اس دعوت خاص کے لیے بھی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ بیبے نے لاجورد اور اریبہ کے لیے ایک جیسے فیروزی کام والے بھاری لہنگے بنوائے تھے، جن پر چاندی کے تاروں اور موتیوں سے نفیس کام بنا ہوا تھا۔ لاجورد تو اس لباس کو دیکھ کر گھبرا گئی، کیونکہ وہ دیکھنے میں بھاری لگ رہا تھا۔ پہن کر تو نہ جانے اس کا کیا حال ہوتا، مگر بیبے کی خوشی کے خیال سے چپ کر گئی۔ آج چاند رات تھی۔ چونکہ ذی الحجہ کا چاند 10 دن پہلے سے طلوع ہو جاتا ہے، اس لیے مائی شوال جیسا ذوق و شوق تو نہ تھا، مگر پھر بھی چاند رات تو تھی نا، اور لاجورد کے لیے تو پہلی چاند رات تھی۔ پہلی عید تو بس ایسے ہی گزر گئی تھی، صحیح معائنوں میں تو عید اب آئی تھی۔ بیبے نے شہباز اور سنگین خان کو حکم دیا کہ وہ ان دونوں کو فوراً بازار لے کر جائیں، دونوں کو چوڑیاں اور چند چھوٹی موٹی چیزیں دلائی جائیں۔ دونوں ہی خوشی خوشی تیار ہو گئیں۔ یہ اور بات لاجورد نے اپنی خوشی کو ظاہر نہیں کیا، وہ چاروں ہی رات کو نکل پڑے۔ ارباز نے لاجورد کو آنکھ ماری اور ان سے پہلے نکل گیا۔ لاجورد مسکرا دی، اسے پتا تھا وہ کہاں جا رہا ہے، مگر باقی سب پر ظاہر نہیں کیا۔ بازاروں میں بے پناہ رش تھا، لڑکیاں جوق در جوق چوڑیوں کے اسٹالز پر کھڑی تھیں۔ وہ دونوں بھی اپنے لیے چوڑیاں پسند کرنے لگیں۔ شہباز کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ لاجورد کے لیے خود چوڑیاں پسند کرے، مگر وہ تو اس سے مکمل بے نیاز تھی۔ دوسری طرف اریبہ خان کا دل بھی بجھا بجھا تھا۔ سنگین خان کی لاتعلقی اس کے دل کا بوجھ بڑھا رہی تھی۔ شہباز سخت بور ہو رہا تھا۔ یار، یہ ہماری ہی بیویاں ہیں نا؟ شہباز نے سخت برہم انداز میں سنگین خان سے پوچھا، جو دلچسپی سے رونقوں کو دیکھ رہا تھا۔ سنگین خان قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ کیوں یار، تم تو بڑے غصے میں ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہم یہاں کھڑے بالکل چغد لگ رہے ہیں، اور وہاں ہماری بیگمات کو چوڑیوں والے مسکرا مسکرا کر دیکھ رہے ہیں، مگر مجال ہے جو ہمیں لفٹ ہی دے دیں۔ سنگین خان اس کی برہمی کا لطف لے رہا تھا۔ آخر خدا خدا کر کے دونوں فارغ ہوئیں، اور یوں رات 12 بجے کے قریب وہ چاروں گھر پہنچے۔ عید کی صبح مرد حضرات تیار ہو کر عیدگاہ چلے گئے۔ لاجورد نے بچوں کو تیار کیا اور انہیں آیا کے حوالے کر کے خود بھی تیار ہونے چل دی۔ تیار ہو کر آئی تو سب سے پہلے بیبے کے پاس گئی۔ عید مبارک بیبے۔ اس نے ان کے سامنے سر جھکایا تو انہوں نے بے اختیار اس کا ماتھا چوم کر اسے گلے لگا لیا، اور پھر چند نوٹ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ لاجورد کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ پھر اس نے اماں کو عید کی مبارکباد دی، انہوں نے بھی ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ پیار کیا۔ اتنے میں مرد حضرات عید کی نماز پڑھ کر آ گئے۔ لاجورد نے آگے بڑھ کر ملک شاہ نواز کو عید کی مبارکباد دی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ساتھ ہی اسے عیدی بھی دی۔ بابا، عیدی تو لوگ عید الفطر پہ دیتے ہیں، یہ تو بقرعید ہے، ارباز نے شرارت سے کہا۔ میری بیٹی کی عید تو صحیح معائنوں میں اب ہوئی ہے، اور پھر بیٹیوں کو تو ہر عید پر عیدی ملنی چاہیے، کیوں بیٹا؟ بابا جان نے ارباز کو شرارت سے دیکھتے ہوئے لاجورد سے پوچھا۔ جی ہاں بالکل بابا جان، بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں۔ لاجورد ان کی شرارت سمجھ گئی۔ کیا مطلب؟ کیا بیٹے فالتو ہوتے ہیں؟ ارباز تڑپ گیا۔ چلو چلو باتیں نہ بناؤ، میری عیدی نکالو۔ لاجورد نے اسے گھیر لیا۔ اس نے مدد طلب نظروں سے شہباز کو دیکھا، مگر انہوں نے مسکراتے ہوئے انگوٹھا دکھایا۔ وہ اس کھلی غداری پر کھول کر رہ گیا۔ پھر بہت تنگ کرنے کے بعد ارباز نے اسے عیدی دی۔ شہباز نے اتنے شوخ روپ میں اسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ لاجورد نے شہباز کو دیکھا تو سر جھکا کر دھیرے سے عید مبارک کہا اور کچن میں چلی گئی۔ ناشتے کے بعد مرد حضرات قربان گاہ کی طرف چلے گئے اور عورتیں کچن میں مصروف ہو گئیں۔ سنگین خان عید کی نماز پڑھ کر آئے تو دیکھا اریبہ خان کیل کانٹوں سے لیس تھی۔ اس کی تیاری اتنی بھرپور تھی کہ سنگین خان کو خود کو لاپرواہ ظاہر کرنے کے لیے بڑی جد و جہد کرنی پڑی۔ عید مبارک، اریبہ خان نے دھیرے سے کہا۔ خیر مبارک، سنگین خان نے سر مہری سے کہا اور اندر کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ اریبہ خان بجھ سی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلے۔ میں ڈیرے کی طرف جا رہا ہوں قربانی کی نگرانی کے لیے، تم چاہو تو انکل کی طرف چلی جاؤ، میں شام میں فنکشن اٹینڈ کرنے آ جاؤں گا۔ وہ بے نیازی سے کہتے ہوئے چلا گیا اور اریبہ حق دک کھڑی رہ گئی۔ جی چاہ رہا تھا ساری تیاری کو آگ لگا دے، پھر اس نے سوچا کہ اگر انہیں پرواہ نہیں تو نہ صحیح۔
उसने ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहा और पर्स और चादर लेकर आ गई। घर पहुंची तो सबसे पहले लाजवर्द से सामना हुआ। वो उसके गले लग गई। दोनों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। फिर वो अम्मा और बेबे से ईद मिलने चली गई। अरबाज, शहबाज और संगीन खान ने मिलकर लॉन को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया था। मसनूई रोशनियों से पूरा लॉन बक़े नूर बना हुआ था। मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। लाजवर्द और अरीबा खान तैयार होकर आईं तो हर निगाह तौसीफी अंदाज में उनकी सिमत उठ गई। जज तो शहबाज और संगीन खान भी रहे थे। दोनों ने ब्लैक शलवार कमीज पहन रखी थी। ब्लैक चादर कंधे पर डाले, पाँव में पेशावरी चप्पल पहने दोनों ही बड़े जबरदस्त लग रहे थे। लाजवर्द के बेटों साद और तलहा को आया ने संभाल रखा था। वो और अरीबा खान परियां बनी मेहमानों को रिसीव कर रही थी। खुशियों भरी ये रात धीरे धीरे अपने अख्ताम की तरफ गामजन थी। आखिरकार ये खूबसूरत तकरीब इस खूबसूरत रात की तमाम तर खूबसूरतियों के समेटे अपने अख्ताम को पहुंची। शानदार तोआम के बाद मेहमान एक एक करके रुखसत होने लगे। रात 11 बजे तक सब मेहमान रुखसत हो चुके थे। अब लॉन में घर के अफराद बैठे खुशगपियों में मसरूफ थे। 11:30 बजे के करीब संगीन खान ने भी जाने की इजाज़त चाही। अरे बेटा, रात बहुत हो गई है, यहीं ठहर जाओ। बेबे ने प्यार भरा इसरार किया तो सब ने ही तायद की। ज़रूर रुकता बेबे, मगर बाबा जान की अदम मौजूदगी में घर पर मेरा होना ज़रूरी है। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, जाओ अरीबा चादर लेकर आओ। बेबे ने साथ ही अरीबा खान को भी उठने का इशारा किया। जी ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। अरीबा उठते हुए बोली, प्लीज़ अब घर जाकर चेंज कर लीजिएगा, देर हो रही है। संगीन खान के अंदाज में उजलत थी। अरीबा खान सर हिलाती अंदर से पर्स और चादर लेकर आ गई और सबसे मिलकर गाड़ी में बैठी। उसके बैठने के बाद संगीन खान ने खामोशी से गाड़ी आगे बढ़ाई और घर की राह पर डाल दी। दोनों बच्चों को आया ने सुला दिया था। दोनों ही फीडर पीते थे, इसलिए भी लाजवर्द को ज्यादा फिक्र नहीं होती थी। वो काफी थकी हुई थी। उसने सोचा कि शहबाज के कमरे में आने से पहले ही सो जाए, मगर जो ही वो कमरे में आई शहबाज को बेड पर लेटे देखकर चौंक गई। अभी वो ड्रेसिंग रूम जाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि शहबाज उसका इरादा भांपकर उसकी राह में आ गया। प्लीज लाज, आज नहीं। आज तुम यूं कनी कतरा कर नहीं गुजरोगी। आज तुम मेरी बात जरूर सुनोगी। बहुत दिन तुमने गुरेज की राह इख्तियार की, मगर आज नहीं। शहबाज ने उसकी राह रोकते हुए फैसलाकुन अंदाज में कहा। मगर मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती, वो बेरुखी से कहते हुए आगे बढ़ी, मगर शहबाज ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। लामुहाला उसे रुकना पड़ा। लाज, मैं जानता हूं कि मैं बहुत रूठ रहा हूं तुम्हारे साथ, बहुत ज्यादता की है मैंने तुम्हारे साथ, तुम्हें नाकुर्दा गुनाहों की सजा देता आया हूं। मगर लाज, उस वक्त मेरी सोच, मेरा जहन सब उस हादसे के बायस मफलूज हो चुके थे। मेरी अपनी कोई सोच रही ही न थी। मेरा जहन कुछ भी तस्लीम करने को तैयार ना था। इस तरह करके तकलीफ अगर तुम्हें दी है तो अजियत खुद भी सहता रहा हूँ। आंसू तुम्हारी आंखों से टपके हैं तो अश्क मेरे दिल पर भी गिरते रहे हैं। रज्जगे तुम्हारी आंखों ने काटे हैं तो सोया मैं भी नहीं। तकलीफ तुम्हें होती तो तड़पा मैं भी हूँ। शहबाज सांस लेने को रुका। लाज खामोशी से सुनती रही। तुम सोच रही होगी कि आज चूंकि सारी हकीकतों पर से पर्दा उठ गया है तो मैं तुमसे ये सब कुछ कह रहा हूँ। नहीं लाज, जब तुम अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थी और डॉक्टर्स तुम्हारी जिंदगी से नाउमीद हो चुके थे, तब मैंने जाना कि शहबाज की जिंदगी तो लाज है। लाज उसकी जिंदगी से निकल गई तो शहबाज के पास क्या रह जाएगा? शायद सांस लेने का जवाज भी नहीं। जिंदगी दरगोर हो जाता मलिक शहबाज। और फिर मैंने अपने रब से रो रो कर गिड़गिड़ा कर तुम्हारी जिंदगी की भीख मांगी, और मैं रब ताला का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे मेरी पहली मोहब्बत लौटा दी, जिसे मैं अपनी नादानी के हाथों खोने चला था। शहबाज ने कहा तो उसकी आखिरी बात ने लाजवर्द को बुरी तरह चौंका दिया और वो टकर टकर उसकी तरफ देखने लगी। हैरान हो रही हो ना? हाँ लाज, मोहब्बत तो मैं तुमसे उस वक्त से करता हूँ जब मुझे मोहब्बत के मफहूम भी सही तरह से मालूम नहीं थे। तुम्हें शायद याद न हो, ये उन दिनों की बात है जब मैं सेकेंड डे में पढ़ता था। तुम उस वक्त शायद स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन कॉलेज से वापसी पर मेरी साइकिल ने तुम्हें टक्कर मार दी थी और तुम अपनी मोटी मोटी आंखों में आंसू समय गुस्से से मेरी तरफ देख रही थी, और वो लम्हा पूरी जज्जियात समेत मेरे दिल पर नक्श हो गया। उसके बाद मैं रोजाना उसी टाइम पर उसी जगह छुपकर तुम्हारा इंतजार करता था और बहुत खामोशी से तुम्हारी एक झलक देखकर चल देता था। मेरी ये खामोश मोहब्बत बहुत अरसे तक मेरे दिल तक महदूद रही और फिर मैं पढ़ने के लिए शहर चला गया, मगर तुमसे मोहब्बत का जुनून रोज़े रोशन की तरह मौजूद था। लाजवर्द दम बखुद ये सब सुन रही थी। हमारे खानदानों के बीच दुश्मनी का मुझे इल्म था, मगर मैं जानता था कि इस दुश्मनी में अब दम खम नहीं रहा, और फिर मुझे यकीन था कि बाबा मेरी बात ज़रूर मानेंगे। मगर तकदीर हमारे साथ कौन सा खेल खेलने वाली थी ये मैं नहीं जानता था। तुम खुद ब खुद मुझ तक आ गई।
मगर तब मेरा जहन बहुत प्रगंदा हो चुका था। अब बाकी की सारी सूरत हाल तुम्हारे सामने है। अब चाहो तो मुझे माफ़ कर दो, चाहो तो मुझसे मुंह मोड़ लो। शहबाज ने सारी बात खत्म करके गहरी सांस ली और आहिस्तगी से बेड से उठा और चलता हुआ खिड़की में जा खड़ा हुआ। लाजवर चुपचाप इस सारी सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ उसकी चुप शहबाज के दिल को धड़का रही थी। उसके दिल में वसवसे से जन्म ले रहे थे। काफ़ी देर कमरे की फिजा में खामोशी तारी रही और जब शहबाज उसकी तरफ से किसी किस्म की पेशरफ से मायूस हो चुका था कि वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसके पीछे जा खड़ी हुई। उस दिन उस इत्तेफाकी हादसे ने अगर आपके दिल की दुनिया में तब्दीली लाई थी तो उसके असर से महफूज मैं भी न रह पाई थी। आपकी चमकती हैरान आंखों ने मेरे दिल पर भी नकब लगाई थी। पहरों में आपको सोचती रही थी। आपको खो देने का तस्वुर सुहाने रूह लगता और आपको पाना एक ख्वाब। फिर जब हादसाती तौर पर आपका साथ मिला तो मैं खुद अपनी किस्मत पर नाज़ा थी, खुद को खुशकिस्मत तस्वुर कर रही थी। मगर जब यहाँ आकर आपकी नफरत मिली तो दिल को बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मैंने सब्र से तमाम हालात का मुकाबला किया और आज आप अपनी मोहब्बतों समेत सिर्फ मेरे हैं। उसकी पोस्ट पर पेशानी टिकाए लाजवर धीरे से धीरे बोलती चली गई। शहबाज हैरत से पलटा। तुम सच कह रही हो? क्या तुम भी मुझसे प्यार करती थी? शहबाज ने उसे कंधों से पकड़कर झंझोर डाला। हाँ, उससे मुस्कुराते हुए धीरे से इकरार किया। फिर तुमने मुझे ईद की मुबारकबाद क्यों नहीं दी? शहबाज ने छेड़ा। दी तो थी, लाज ने कहा। ऐसी रूखी फीकी मुबारकबाद माँ बदौला को कबूल नहीं। शहबाज ने उसे खुद से करीब किया तो वो बुरी तरह से पटा गई। पहले मेरी ईदें निकालें। उसने अपनी हथेली फैलाई और शहबाज ने उसकी फैली हथेली को थामकर उस पर अपने प्यासे लब रख दिए और फिर उसे लिए एक अलमारी की तरफ बढ़ा। अलमारी का लॉक खोलकर उसमें से ढेरों पैकेट निकाले। ये सब क्या है? लाज हैरान हुई। ये तुम्हारे गिफ्ट्स जो मैंने मुख्तलिफ मौक़ों पर तुम्हारे लिए लिए हैं। वो हर मौके पर लिया गिफ्ट उसे देते हुए बोला और लाजवर्द इतनी मोहब्बत पर नाज़ा हो गई। वाकई अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। वो अगर अपने बंदे को आजमाता है तो सब्र करने वालों को नवाजता भी है। अगर लाज की आजमाइश बड़ी थी तो यह इनाम उससे भी बड़ा था। लाज का दिल अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ था। अरीबा खान और संगीन खान रात 12 बजे के करीब घर पहुंचे। सारा रास्ता दोनों खामोश रहे थे। संगीन खान की लाताल्लुक़ी ने अरीबा खान को भी बात करने का हौसला नहीं दिया था। घर पहुंचते ही वो गाड़ी से उतरकर तेज तेज डग भरता अपने कमरे की जानिब चला गया। अरीबा खान फौरन उसके पीछे न जा सके। कुछ तो अपने बने सवरे रूप से शर्मा रही थी और कुछ संगीन खान का सर्द अंदाज बेहौसला कर रहा था। कुछ देर वहीं लाउंज में बैठी रही, मगर कब तक? आखिर उठी और कमरे में चली आई और संगीन खान को पैकिंग करते देख हैरान रह गई। कुछ लम्हे खामोशी से देखती रही, फिर रहा नहीं गया तो पूछ बैठी, ये आप क्या कर रही हैं? पैकिंग। जवाब मुख्तसर था। कहाँ जा रहे हैं? अरीबा ने हैरान होकर पूछा। पेरिस। जवाब अब के भी इख्तिसार से दिया गया। मगर क्यों? अरीबा ने पूछा। बिजनेस सेट करने के लिए, और अब वहाँ मैं 3-4 साल रहूँगा। यहाँ का बिजनेस बाबा जान संभाल लेंगे। 15 दिन बाद वो वैसे भी आ रहे हैं। इस दौरान आप चाहें तो अंकल की तरफ जा सकती हैं। अब के जवाब पूरी तफसील से दिया गया था, मगर अरीबा खान के 14 तबक रोशन हो गए थे। ये आप क्या कह रहे हैं? अरीबा खान हैरान परेशान हो गई। जो आपने सुना वही कह रहा हूँ। अब के संगीन खान ने सूटकेस बंद किया और सीधा खड़ा हो गया। शायद वो अपनी पैकिंग मुकम्मल कर चुका था। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ा। चंद लम्हों बाद नाइट ड्रेस में मलबूस बाहर आया। अरीबा खान अब तक गुमसुम खड़ी थी। संगीन खान ने एक नज़र उसके सजे संवरे रूप पर डाली। दिल बेईमान होने लगा, मगर अपने दिल पर पाँव रखता वो बेनियाज बना बेड पर जाकर लेट गया। अब इतना तंग करना तो उसका भी हक बनता था ना। प्लीज़ लाइट ऑफ कर दें, मुझे नींद आ रही है। वैसे भी सुबह 6 बजे मेरी फ्लाइट है। सर से पाँव तक कंबल तान कर वो बोला। अरीबा खान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, ताहम अपनी जगह से अब तक उसने हरकत न की थी। अरीबा खान, यही मौका है, मना लो इसे। अगर वो सुबह चला गया तो सारी उम्र पछतावे तुम्हारे संग रह जाएंगे। अरीबा खान का दिल उसे उकसा रहा था। दफतन वो आगे बढ़ी और खैर मुतवक्के तौर पर संगीन खान के ऊपर से कंबल खींचकर दूर फेंक दिया। वो हैरान हो उठा। आप इस तरह कैसे जा सकते हैं? उसने कड़े तेवरों से पूछा। क्या मतलब कैसे जा सकता हूँ? जैसे सब जाते हैं। सब जाते होंगे मगर आप नहीं जा सकते। ज़बरदस्ती है क्या? संगीन खान ने घूरा। हाँ, ज़बरदस्ती है। आप यूं मुझे सूली पर लटका कर नहीं जा सकते। माना कि मैंने आपको बहुत हर्ट किया है, आपके साथ बदतमीज़ी की है, मगर अब मैं अपने किए पे शर्मिंदा भी तो हूँ। आप यूं मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते।
बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तन फन करती वो आखिर में चेहरा हाथों में छुपा कर रो पड़ी। संगीन खान बौखला उठा। अरे अरे ये क्या, आप मुझे मना रही थी या लड़ रही थी, और अब ये रोना किस बात पर शुरू कर दिया? अरीबा खान का रोना बदस्तूर जारी था। मैं तो समझा था आप बड़े रोमांटिक मूड में मुझे मनाएंगी, मगर आप तो हिटलर की जानिशीन हैं। मुआफ़ी भी मांगती हैं तो तलवार गर्दन पर रखकर। वो मुसलसल उसे छेड़ रहा था और वो सूं सूं किए जा रही थी। जब उसका रोना हद से गुजर गया तो संगीन खान भी संजीदा हो गया। प्लीज़ अरीबा, चुप करो ये रोना धोना। पहले आप वादा करें कि आप कहीं नहीं जाएंगे, उसने रोने के दौरान पूछा। सॉरी यार, जाना तो कल ही तय है। संगीन खान का लहजा शदीद संजीदा था। अरीबा खान पहले तो हैरत से उनको देखती रही और फिर अपनी जगह से उठी और उनके सीने पर मुक्कों की बारिश कर दी। अब जाकर तो दिखाएं, मैं भी देखती हूँ आप कैसे जाते हैं। कमाल है, मैं आपको मना रही हूँ और आप हैं कि माश की दाल की तरह अकड़े जा रहे हैं। संगीन खान पहले तो इस दहशतगर्दी पर हैरत ज़दा हुए और फिर कहका लगाकर उसके दोनों हाथ थामकर उसे खुद से करीब कर लिया। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम आज इतनी हसीन लग रही हो कि आज तो तुम्हें 7 खून भी मुआफ हैं। उसका लहजा गंभीर होता चला गया और अब सटपटाने की बारी अरीबा खान की थी। अपनी दीवानगी और अपनी हालत पर ढेरों ढेर शर्म ने आ लिया। संगीन खान उसकी हालत से महफूज हो रहे थे। अब तो आप नहीं जाएंगे ना? अरीबा ने धीरे से पूछा। जाना तो फिर भी है। संगीन खान ने लब दबाकर संजीदगी इख्तियार की। जी? अरीबा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाईं और संगीन खान ने भी मजीद तंग करने का इरादा तर्क कर दिया। भाई जाना तो है, मगर अकेले नहीं, तुम भी मेरे साथ जा रही हो। अगरचे हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, मगर इतना भी नहीं कि अपना हनीमून भी ना मना सकें। हाँ भी, हम 2 हैं, 3 हो गए तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा अपना हनीमून जल्दी से मना लें। अरीबा उनकी आखिरी बात पर ब्लश हो गई। तुमने तो मार मार कर मेरा भरकस निकाल दिया है जालिम लड़की, अब ईद की मुबारकबाद भी दे दो। अरीबा बुरी तरह शर्मिंदा हुई। ईद मुबारक, उसने रुख मोड़ कर कहा। किसको ईद की मुबारक दे रही हो? संगीन खान चढ़ गया। आपको? वो ज़ेरे लब मुस्कुराई। मगर मैं तो यहाँ हूँ। संगीन खान ने उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। अरीबा ने सर झुकाकर धीरे से कहना शुरू कर दिया। ईद मुबारक, खैर मुबारक। संगीन खान ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा और दोनों ही खुले दिल से मुस्कुरा दिए। कैसा लगा आप लोगों को ये शॉर्ट नॉवेल? ऐसे ही छोटे छोटे शॉर्ट नॉवेल अच्छे अच्छे अपनी पसंद के हमें सजेस्ट करते रहिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये नॉवेल्स हमारी आवाज़ में सुनने के लिए नॉवेल्स हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करते रहिए। थैंक यू।